shall we wait for some few more minutes because हाँ, still we there should. are 10 or 12 participants. No? Start, Parimal. Okay, sure. So hi everyone. Very good afternoon to all the respected members virtually present. I, CA Parimal Agarwal, on behalf of Moradabad branch of CIRC of ICI and the managing committee members, CA Mani Gupta ma'am, chairperson, CA Amit Agarwal sir, secretary, and CA Vijay Bansal sir, vice and Sikasa chairperson. Welcome and thank you all for joining today's VCM. I would also like to thank the managing committee members for providing me with this opportunity to once again conduct today's VCM. A very warm welcome and special thanks to our speakers for today, CA Sagar Agarwal sir and CA Ayush Agarwal sir from Rampur. Thanks for accepting an invitation and sparing your precious time to enlighten us all with your precious knowledge. And without wasting much time, so that the speakers will get the maximum time to speak on their topics and we get the maximum knowledge, I would request our honorable chairperson, CA Mani Gupta ma'am, to convey the welcome address. Please, ma'am. Thank you, Parimal. Thank you very much. A very happy evening to all. Hope all good at at your side. Today we have gathered on this audio video platform to discuss the most relevant topic. In December, we are busy in filing returns, but please take 2 hours of yours so that we can hear Sagar Agarwal sir on AIS and other filing technicalities and Ayush Agarwal on internal audit. Ayush Agarwal is from Delhi. I think you might be remembering last meeting we have introduced CS Rohit Agarwal. Sagar, it was Rohit Agarwal only, na? CS Rohit Gupta. CS Rohit Gupta. I think he was. He was Rohit Gupta. And everyone was very much impressed with him, and we had calls that we need to ask queries from him, and I think the same from Ayush Agarwal, CA Ayush Agarwal. I welcome everyone, CA Sagar Agarwal, CA Parimal Agarwal, our moderator, CA Ayush Agarwal, and Vijay Bansal sir and Amit sir. Vijay sir, are you there? Amit sir? Chaliye, without wasting much of the time, as Parimal said, most of the time we all keep on talking and our speakers we have less chance to listen our speakers. Without wasting time, I request Parimal Agarwal to take the meeting forward. Thank you, Parimal. Thank you, ma'am. So let me introduce you all to our first speaker for today. Very learned and humble, Sagar Agarwal sir from Rampur. Sir, एक बार फिर से आपका स्वागत है. Last meeting October में हुई थी and it was a wonderful meeting. Thank you. So let me give a brief introduction. CA Sagar Agarwal sir is in practice in Rampur since 2017. He has a passion for teaching and is a career counselor and mentor for many CA students. He is engaged in teaching CA Foundation Accounts and Law and CA Intermediate Taxation since 2016. He believes in the growth of our profession and motivates and guides young minds to be a part of this beautiful profession. Today, he would be speaking on the topic, procedure for filing ITR in new tax regime. So he would be covering topics like Section 115 BAC, AIS, and many more problems that we are facing nowadays. So please, sir. Now. Thank you so much, CA Parimal ji. And thank you so much to Moradabad branch of CIRC for allowing me this opportunity. आज मेरा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ITR इन न्यू रिजीम. पहले तो हम सब वेबसाइट की जो कमियां हैं उसी से हम जूझ रहे हैं फिलहाल. फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसमें आप कई सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत सारी चीजें, जब हम ITR फाइल करें तो हम उस चीजों को ना भूलें. मैंने एक छोटी सी PPT तैयार करी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है. सागर अग्रवाल सर, आपका बहुत छोटा ही हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है. मैं बस अभी शुरू करता हूँ. F5 से ही होगा ना? ये F5 से होता है ना स्क्रीन शुरू जो होता है? यस, F5 से स्क्रीन. बट स्टार्ट अच्छा हो गया. तो मेरा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ITR इन न्यू टैक्स रिजीम.
एक्चुअली ये होना थोड़ा सा ऐसा भी चाहिए था, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग आईटीआर इन न्यू वेबसाइट। हमारे पास आपको सबको पता ही है जैसे कि 30 जून के बाद पुरानी वाली वेबसाइट बंद कर दी गई और 1 जुलाई से, बल्कि 6 जुलाई के बाद 7 जुलाई से हमारे पास एक नई वेबसाइट आ गई इनकम टैक्स, जो कि आते ही क्रैश हो गई थी। उस पर हम कुछ नहीं कर पाए उस समय, और शायद अभी भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, टेक्निकलिटीज तो एक अलग चीज़ है, बट हमें जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास 2000 फाइनेंस एक्ट 2020 में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसका हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उनको डिस्कस करते हैं। चेंज इन फाइलिंग आईटीआर, ठीक है, चेंज इन आईटीआर फॉर्म्स। फॉर्म्स में हमारे पास जो जो चेंजेस हुए हैं एक बार उन्हें थोड़ा सा देखते हैं। उसको मैं थोड़ा, सबसे पहला हमारा एक सेक्शन है सेक्शन 194N, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि अगर हम बैंक में कैश जो है वो विड्रॉल करते हैं और वो ज्यादा अमाउंट यानी 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ हो जाता है तो बैंक टीडीएस काटता है। और अगर आपने लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर फाइल नहीं करी है तो 20 लाख से ऊपर पे ही वो टीडीएस काट देता है। तो ये बड़ा एक इशू उठ रहा था कि 194N आखिर कौन से हेड की इनकम में जाना चाहिए, बिजनेस इनकम में आएगा या कौन से में आएगा। तो सभी ने ये कहा कि बिजनेस इनकम में ही आएगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, सपोज एक व्यक्ति की आईटीआर 1 बनती है, यानी उसकी केवल अदर इनकम है या फिर उसकी केवल सैलरी इनकम है और उसका 194N में टीडीएस कटा हुआ है, तो वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। या तो उसे आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा, और अगर बिजनेस इनकम है तो उसे आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा या 4 में जाना पड़ेगा, एज द केस में भी। मतलब वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा अगर उसका टीडीएस अंडर सेक्शन 194N डिडक्ट हुआ है। ऐसे भी कुछ केसेस हो सकते हैं कि उसने 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ कर लिया तो उसका टीडीएस डिडक्ट हो गया। ऑब्वियसली 1 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट में आ जाएगा वो तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये एक बहुत कहना चाहिए बहुत एक नया टॉपिक आया, एक नई चीज आई जिसमें सरकार ने डिविडेंड को टैक्स कर दिया। किसके हैंड में? टैक्स पेयर के हैंड में। अभी तक क्या होता था, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती थी और टैक्स पेयर के हैंड में ये चीज एग्जेम्प्ट रहती थी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। उसके बाद एक नया सेक्शन लाया गया 115 BBDA, आपने शायद सुना होगा 115 BBDA, जिसमें ये कहा गया अगर टैक्स आपका जो डिविडेंड है वो 10 लाख से ऊपर है तो हम उसे टैक्स करेंगे। अब वो भी हटा दिया गया और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी हटा दिया गया। अब इन्होंने सीधा 1034 में जो डिविडेंड की एग्जेम्पशन थी वो ही खत्म कर दी। अब डिविडेंड पर टैक्स लगेगा, चाहे वो डिविडेंड कितना भी हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो कितना भी हो, उस डिविडेंड को आपको टैक्स करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी हमें ध्यान देने वाली बात है जब भी हम आईटीआर भरेंगे, कहीं हम डिविडेंड को एग्जेम्प्ट ना कर दें, क्योंकि अब डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं है, अब वो टैक्सेबल हो चुका है और वो उसकी पार्ट में नॉर्मली टैक्स होगा, जैसे स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स होता है वैसे ही टैक्स होगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, वो सिंपल उसी तरीके से उसको हम टैक्स करते रहेंगे। तो हम जब भी आईटीआर भरेंगे इस चीज को हम खास ध्यान रखें कि डिविडेंड टैक्सेबल हो चुका है और उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। एक है डिलीशन ऑफ शेड्यूल DI, ये एक शेड्यूल आया था लास्ट ईयर के आईटीआर में। लास्ट ईयर आपको याद होगा कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन हुआ था तो गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डिडक्शंस के लिए अंडर चैप्टर 6 से 80C to 80U, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इन्वेस्टमेंट का पीरियड 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। आपको याद होगा ये चीज कि वो 3 महीने के लिए एक्सटेंड करा था। तो उसके लिए जब हम आईटीआर भरते थे ना, वो एक एक्स्ट्रा हमसे पूछता था कि क्या 3 महीने के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है क्या वो है। तो इस बार वो हमारा आईटीआर में से हट चुका है, वो हमारे आईटीआर फॉर्म में नहीं दिखा। ये जेन्युइन सी बात है कि वो हटना ही जरूरी है। बाकी अगर मैं कोई चेंजेस कहूँ फॉर्म में तो ऐसा कोई खास चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहले था लगभग वैसा ही है, जैसा पहले था लगभग वैसा ही। कोई खास ऐसा कोई मेजर चेंज कोई कॉलम में या कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मांगी है, ऐसा कोई मेजर उसमें चेंज नहीं है। हाँ, बस कुछ जो अमेंडमेंट्स आई हैं उन्हीं का इम्पैक्ट है, जो हमारे पास अमेंडमेंट्स आई थी उन्हीं का इम्पैक्ट है। कोई मेजर ऐसा चेंज हमारे पास खास नहीं है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है चेंज इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। जो हमारा प्रोसेस था आईटीआर फाइल करने का उसमें बहुत चेंज आया। शुरू में हम सब लोगों को बड़ी दिक्कत आई कि आईटीआर कैसे करें, क्या प्रोसेस होगा नई वेबसाइट पे, क्या नहीं होगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है सेक्शन 115 BAC, जिसके बारे में हम सभी लोग
एक्साइटेड तो है ही, कैसे करना है, क्या करना है इसमें, और ऑप्शंस ऑप्ट भी कराना चाहते हैं एसएससी को, लेकिन ऑप्ट नहीं करा पा रहे। बहुत ही कम ऐसे एसएससी हैं, ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट ने एक ऐसी चॉकलेट दी है जो खाई नहीं जा रही है। हम जब भी टैक्स कैलकुलेट करने जाते हैं वो कहता है रहने ही दो यार नॉर्मल स्कीम में ही कम से कम डिडक्शंस का हमें बेनिफिट तो मिल रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, इसमें उन्होंने हमें डिडक्शंस का बेनिफिट हटा दिया, जो हम चैप्टर 6 की डिडक्शंस लेते थे वो भी नहीं दे रहे, और भी कई सारी ऐसी हमें बेनिफिट्स थे जो गवर्नमेंट ने हटा दिए। और उन्होंने कहा आप टैक्स कम रेट पर दे दीजिए। कितना कम रेट पर दे दीजिए? 2.5 लाख तक निल, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 12.5%, उसके बाद 15%, 2.5 लाख के बाद, और उसके बाद उस पर नहीं सॉरी गलत हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, ये है ना? हाँ 5, 10, 15, मैं कंफ्यूज हो गया। 2.5 लाख से 25 हाँ 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से है वो, 2.5 लाख के स्लैब में है। 15 लाख से ऊपर 30%। हाँ 15 लाख से ऊपर 30%। तो ये जो ऑप्शन है 115 बीएसी, बड़ा कंफ्यूजन एक ये हो रहा था कि इसको हमें कब ऑप्ट करना है, हमें इसे कब ऑप्ट करना है। अभी ऑप्ट कर लें, पहले आईटीआर फाइल करते समय ऑप्ट करें, आईटीआर फाइल करने के साथ ऑप्ट करना है या पहले ऑप्ट करना है, ऑब्वियसली बाद में तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो सेक्शन में डिफाइंड है वो ये है कि अगर आपका बिजनेस एसएससी है, मतलब उसकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी है, तो उसे ये ऑप्शन ऑप्ट करना है बिफोर और ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। जैसे कि एट प्रेजेंट हमारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर क्या है? 31 दिसंबर नॉन ऑडिट केस में, और ऑडिट केस में हमारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर क्या है? 15 फरवरी, जनवरी नहीं, जनवरी ऑडिट की 15 फरवरी। तो हमें उससे पहले पहले अगर बिजनेस एसएससी है तो उसका हमें ये ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। अब एक सवाल उठता है कैसे ऑप्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्म 10IE, ध्यान दीजिएगा फॉर्म 10IE, ये हमारे पास एक फॉर्म है। हम उस फॉर्म को फाइल करेंगे, सिंपल सा फॉर्म है, कोई बहुत डिटेल नहीं है उसमें। उस फॉर्म को फाइल करेंगे और ये ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। ये मैंने बात करी बिजनेस एसएससी की। दूसरी चीज ध्यान देने वाली ये है, अगर वो बिजनेस एसएससी है, उसने एक बार ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, उसके बाद वो चाहता है नेक्स्ट ईयर में ऑप्शन विड्रॉ कर दूं, उसके बाद वो चाहता है मैं उससे अगले साल ऑप्शन फिर से ऑप्ट कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको ये अपॉर्चुनिटी केवल एक ही बार मिली है, एक बार वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेगा तो उसे वो तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक वो चाहता है, तब तक तो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर उसने एक बार विड्रॉ कर दिया उसके बाद उसे दोबारा कभी नहीं ले पाए, उसके लिए वो बार्ड हो जाएगा। एक बार उसने ऑप्ट करके अगर विड्रॉ कर दिया तो उसके बाद वो दोबारा कभी ऑप्ट नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस एसएससी के केस में हमें ये भी क्लाइंट को एडवाइस करना होगा कि भाई आप ऑप्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप अगले साल ये मत कहना कि मैं इसको विड्रॉ करूंगा, ठीक है? और अगर कह रहे हो तो उसके बाद आप कभी इसे दोबारा ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, इसके बाद दोबारा कभी ऑप्ट नहीं। ये केवल बिजनेस एसएससी की बात करी मैंने। बिजनेस एसएससी मतलब जिसकी इनकम अंडर दैट पीजीबीपी आती है, भले वो 44AD में जाए, कैसे भी जाए, इट डजंट मैटर। अगर कोई और एसएससी है, अगर बिजनेस एसएससी के अलावा कोई अदर एसएससी है, तो उसके लिए हमें कोई सेपरेट फॉर्म फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमारे पास कोई ड्यू डेट नहीं है। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर एक ऑप्शन आएगा, आप 115 बीएससी ऑप्ट करना चाहते हैं, यस और नो। आप सिंपल उसे यस या नो कर दीजिए, आप कर सकते हैं, आप तभी उसे ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्या हमें उसे ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा? नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अदर एसएससी है, ड्यू डेट के बाद फाइल करता है और वो आईटीआर में कहता है 115 बीएससी ऑप्ट करना चाहता हूँ, यस ठीक है, वो ऑप्ट कर सकता है उस समय भी, भले वो लेट फीस के साथ पे करे, मतलब जब आईटीआर लेट हो जाएगी तो लेट फीस लग जाएगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो ऑप्ट कर सकता है, बट बिजनेस एसएससी नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अगर अदर देन बिजनेस एसएससी है, वो ये कह रहा है कि मैं ऑप्ट इस साल कर रहा हूँ, अगले साल विड्रॉ कर रहा हूँ, उससे अगले साल ऑप्ट कर रहा हूँ, कैन ही डू सो? आंसर इज यस। अदर देन बिजनेस एसएससी के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जब चाहे ऑप्ट करे, जब चाहे विड्रॉ करे, जब चाहे ऑप्ट करे, जब चाहे विड्रॉ करे, उसके साथ कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है। तो इस सेक्शन का हमें खास ध्यान रखना है, जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं हमें क्लाइंट को ये बात बतानी पड़ेगी। बिजनेस एसएससी के केस में मोस्टली हमारे पास बिजनेस एसएससी ही होते हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक हमारे पास आता है सेक्शन 80M, ये शायद ज्यादा नहीं सुना होगा क्योंकि यहाँ ये कम लगता है। यह है कंपनीज के केस का सेक्शन। मतलब कैसा सेक्शन है ये?
ये भी एक नया सेक्शन आया है अमेंडमेंट के द्वारा। कंपनी जो भी है वो डिविडेंड उसे भी मिलता है कहीं ना कहीं। जैसे सपोज एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। कंपनी ए कंपनी बी के शेयर होल्ड करती है। कंपनी बी ने शेयर डिविडेंड इश्यू करा तो क्या कंपनी ए को भी देगी? यस, वो कंपनी ए को भी देगी। क्या वो कंपनी ए के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर इज यस। क्यों? अब 1034 नहीं है, तो वो कंपनी ए के हैंड में टैक्सेबल हो रहा है। अब कंपनी ए के हैंड में टैक्सेबल हो गया वो। अब कंपनी ए अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो क्या ये डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा? कंपनी ए ने जो डिविडेंड कंपनी बी से रिसीव करा उस पर कंपनी ए ने टैक्स दिया। कंपनी ए ने वो डिविडेंड और अपनी जो इनकम थी वो उठा के अपने शेयर होल्डर्स को दे दी, उन्होंने भी डिविडेंड पर टैक्स पे करा, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया डिविडेंड पर ही। यानी एक ही डिविडेंड दो बार टैक्स हो गया, डबल टैक्सेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स ऑन टैक्स जिसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक सेक्शन लाया गया सेक्शन 80M। आपको ये डिडक्शंस वाला सेक्शन लग रहा होगा। आंसर इज यस, ये डिडक्शंस वाला ही सेक्शन, क्योंकि सेक्शन 80C वगैरह जो होते हैं ना वो डिडक्शंस वाले रहते हैं। तो सेक्शन 80M डिडक्शन वाला ही सेक्शन। इसमें इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी। केस सेम है, कंपनी ए कंपनी बी वाला केस सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अगर कंपनी ए को डिविडेंड मिल रहा है कंपनी बी से और कंपनी ए अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रही है, ठीक है, कंपनी ए अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रही है, तो उसे उस अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी जो उसने कंपनी बी से रिसीव करा है। टैक्सेबल तो करेंगे 1034 में, हम एग्जाम नहीं देंगे, अब टैक्सेबल होगा, लेकिन उसे उस अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी जो उसे कंपनी बी से डिविडेंड मिला है। समझ रहे हैं आप? अभी थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ। कंपनी ए को कंपनी बी से डिविडेंड मिला, ठीक है, और कंपनी ए ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, तो यहाँ पर कंपनी ए चाहती है कि मुझे कंपनी बी से जो डिविडेंड मिला उस पर डिडक्शन मिल जाए या वो मेरा टैक्स ना हो, क्योंकि शेयर होल्डर तो अल्टीमेटली टैक्स देंगे उस अमाउंट पे, शेयर होल्डर तो अल्टीमेटली उस डिविडेंड पर टैक्स देंगे ही, ठीक है। तो कंपनी ए को कंपनी बी से जो अमाउंट मिली है उसकी डिडक्शंस मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80M, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होना तो हमारे लिए अनिवार्य है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? कंपनी ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑन और बिफोर द कंपनी ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी बिफोर 1 month फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी फ्रॉम द बिफोर 1 month फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। कंपनी ए की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR क्या है? अगर ऑडिट केस है तो 15 February, और अगर नॉन ऑडिट केस है तो 31 December, ठीक है। अगर ऑडिट केस है तो 15 February, अगर नॉन ऑडिट केस है तो 31 December। तो यानी इसे 30 नवंबर तक कंपनी ए को अपना डिविडेंड बांटना पड़ेगा। 30 नवंबर तक अगर नॉन ऑडिट केस है तो अपना डिविडेंड बांटना पड़ेगा, और अगर 15 फरवरी है तो 15 जनवरी तक अपना डिविडेंड बांटना पड़ेगा। 16 जनवरी बैठेगा, 31 का महीना है, 16 जनवरी तक अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत ध्यान देने वाली बात है। सपोज हमारे पास एक कंपनी है जिसका यही केस है, और अगर हमने उसे एडवाइस नहीं करा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसको भी हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमने उसे समय से एडवाइस नहीं करा कि भैया तुम्हें इस तरीके से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक और बात, क्या सारी डिडक्शन देते हैं? सपोज कंपनी बी ने डिविडेंड दिया 1 करोड़ रुपए का और कंपनी ए ने डिविडेंड बांटा है केवल 10 लाख रुपए का, सारी डिडक्शन तो नहीं मिल सकती ना। मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम कितनी? जितना आपको डिविडेंड मिला है और जितना आपने बांटा है, विच एवर इज लोअर। यानी 10 लाख बांटा, 10 लाख की डिडक्शन दे दो, ठीक है। 10 लाख बांटा, 10 लाख की डिडक्शन दे दो, ठीक। अगर आपने 1 करोड़ मिला है, 2 करोड़ बांटा तो 1 करोड़ की डिडक्शन दे दो, विच एवर इज लोअर। ऑब्वियसली वही डिडक्शन जनरली हमें मिलेगी। तो सेक्शन 80M को भी हमें बहुत ध्यान देना होगा, इसे भी हमें बहुत ध्यान देना होगा जब भी कोई कंपनी एसआईसी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन स्कीमा। पहले हमारे पास आया करते थे XML और एक्सेल यूटिलिटी, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास क्या है? JSON, जिसे हमने किसने सिखाया? JSON फाइल भी होती है, GST ने सिखाया था भैया, है ना। उससे पहले तो शायद हमें ऐसी जानकारी भी नहीं थी कि JSON नाम की भी फाइल होती होगी, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं थी जानकारी। तो पहले हमारे पास XML स्कीमा हुआ करता था, आज के टाइम में हमारे पास JSON स्कीमा। कोई इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो ITR करने से मतलब है।
एक हमारे पास एक्सेल यूटिलिटी हुआ करती थी पहले, जो आज के टाइम में अभी हमारे पास नहीं है। मैं आज ही वेबसाइट पर ये चीज देख रहा था, तो ITR 5 की एक्सेल यूटिलिटी आ चुकी है। ठीक है, बाकी भी अब मुझे उम्मीद हो रही है कि शायद आ जाएंगी। ITR 5 की एक्सेल यूटिलिटी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब आता है प्रोसेस ऑफ फाइलिंग। क्या प्रोसेस ऑफ फाइलिंग में कुछ चेंज हुआ है? पहले हम ऑनलाइन फाइल कर सकते थे ITR, आज भी हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। पहले हम ऑफलाइन फाइल कर सकते थे ITR, आज भी हम ऑफलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कोई भी चेंज मेजर नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सेम मोड है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं आज जो ऑनलाइन है और जो पहले जो ऑनलाइन था उसमें बहुत बड़ा फर्क हो गया। आज ऑनलाइन फाइलिंग का जो मोड है वो काफी इम्प्रूव्ड हो गया है, काफी उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, तो आज अच्छा हो गया है फिलहाल। बट हमारे पास वैसे मोड दो ही है। वेरिफिकेशन ऑफ ITR, वेरिफिकेशन ऑफ ITR में हमारे पास आते हैं, वहाँ पे एक आता है आधार OTP से कर लो, एक आता है EVC से कर लो, और एक आता है कि बेंगलोर भेज दो, है ना। 3 पॉइंट आते हैं, और कोई भी है? यही 3 होते हैं ना। एक आधार OTP से कर लो, एक बैंक EVC से कर लो, और एक बेंगलोर भेज दो। पहले भी यही थे, कोई चेंज नहीं है। हाँ, बस एक चेंज बहुत बड़ा हो गया है, EVC काम नहीं कर रहा। किसी का काम करा EVC? मेरा तो नहीं कर रहा मैंने बहुत ट्राई करा, बट है किसी का काम करा? नहीं, मैंने ट्राई नहीं करा। ट्राई नहीं करा, मैंने ट्राई किया था, EVC मेरा काम नहीं कर रहा। तो Okay. आधार OTP ही चल रहा है या फिर बेंगलोर भेज दो, फिलहाल 2 ही चल रहा है। बट हाँ, है तीनों ऑप्शन हमारे पास। मेरा तो आधार भी काम नहीं कर रहा सागर भाई। आधार भी काम नहीं कर रहा, तो भाई आधार में मोबाइल नंबर चेंज कराओ यार, फिर तो कुछ और ही मसला होगा फिर तो मोबाइल नंबर ठीक है मोबाइल नंबर ठीक है, फिर भी काम नहीं कर रहा, तो वेबसाइट एरर, मैं बताया ना, टेक्निकल एरर तो बहुत सारे हैं, उसे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इन फाइलिंग ID। एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मतलब क्या है, जो आज मेन हमारा टॉपिक रहने वाला है, बाकी तो इतना ज्यादा था ही वो इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आया, पहला फॉर्म 26A, दूसरा टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और तीसरा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें हमें 2 चीजें नई देखने को मिली। फॉर्म 26A तो हम पहले से देखते जा रहे हैं, उसमें हमारे लिए नया कुछ नहीं है। एक चीज नई है, वो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। दूसरा हमारे पास है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और तीसरा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो 3 चीजें ये आई हैं 26A में भी चेंज करा है इन्होंने। एक 1 जून 2020 को एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया, 285BB, सेक्शन 285BB। इंट्रोड्यूस करना गलत होगा मेरा कहना है, पहले भी था ये, लेकिन अब इसको अमेंड करा गया, सेक्शन 285BB को अमेंड करा गया। इसमें क्या कर दिया सेक्शन 285BB में, ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होगा यहाँ पे हमारे पास, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये हुआ ऑथोराइज्ड पर्सन। उसे मैंडेटरीली एक फॉर्म फाइल करना है, यानी हमें नहीं करना, किसी अथॉरिटी को नहीं करना, उसे मैंडेटरीली एक फॉर्म फाइल करना है। क्या फॉर्म फाइल करना है? AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना है। कहाँ फाइल करना है? हर असेसी की ID पर फाइल करना है। हर असेसी की ID मतलब जो हमारे पास लॉगिन उसका अकाउंट है, वहां वो फाइल करेगा। कब फाइल करना है? ये फाइल करना है जब भी उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब भी उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस मंथ के एंड होने के 3 महीने के अंदर। जैसे कि सपोज करिए आज को इंफॉर्मेशन मिली है, कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर 2021 चल रहा है हमारे पास। इसके 3 महीने तक, यानी मार्च 2021, 31 मार्च 2021 के तक उसे इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हमें एनुअली प्रोवाइड होगा, हम गलत सोच रहे हैं। ये हमें क्वार्टरली मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें क्वार्टरली मिल जाएगा। तो कौन फाइल करेगा? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कमिश्नर, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, कमिश्नर के या चीफ कमिश्नर के? आई थिंक कमिश्नर के इक्विवेलेंट होते हैं ना ये। Sir, no idea on this. No idea, Sagar.
ये फाइनल में पढ़ता हूँ, भूल गया। ये शायद कमिश्नर के इक्विवेलेंट होते हैं, अगर गलत हूँ तो प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिएगा, किसी को अगर पता हो, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। तो उनके इक्विवेलेंट होते हैं, तो उन्हें एक इंफॉर्मेशन फाइल करनी है AIS। AIS में हर कब तक करनी है, जिस महीने में उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके 3 महीने के अंदर अंदर, उसके एंड होने के 3 महीने के अंदर अंदर ये फाइल होगी। अब हमारे पास फर्क एक और छोटा सा बात यहाँ पर ये है कि हमारे लिए कौन सा फॉर्म रेलिवेंट है, फॉर्म 26AS, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 26AS इंपॉर्टेंट। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे, हमें तो AIS डाउनलोड करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। नहीं, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 26AS इंपॉर्टेंट, और कोई भी फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों? इन्होंने AIS में इंफॉर्मेशन हमें दी, वो इंफॉर्मेशन AIS से डायरेक्ट फॉर्म 26AS में पार्ट E में चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात है। प्रिंसिपल डायरेक्टर या ऑथोराइज्ड पर्सन बोल देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑथोराइज्ड पर्सन ने जो इंफॉर्मेशन AIS में दी वो हमारे 26AS में शो हो जाएगी पार्ट E में। ये बात लॉ में लिखी। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ये आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग हो रहा है, बट ये बात लॉ में लिखी है। लॉ में लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन AIS में आएगी वो 26AS में पार्ट E में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो 26AS में पार्ट E में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 285BB, और इसका रूल है 114I। ठीक है, मैं रेफरेंसेस भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसे नोट कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी। सेक्शन 285BB और रूल 114I, रूल 114I, 114I। तो इसमें ये बात लिखी हुई है कि जो भी इंफॉर्मेशन AIS में होगी वो 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा, हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। तो जैसा प्रैक्टिकली हो रहा है वैसा ही करना पड़ेगा फिलहाल हमें, क्योंकि हमें हर क्लाइंट का रिटर्न करते समय AIS डाउनलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, और कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम तो कर ही लेंगे, हमें तो रिटर्न फाइल करनी है। AIS क्यों लाया गया, सवाल एक ये भी आता है। अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी बताऊंगा मैं। AIS क्यों लाया गया? AIS इसलिए लाया गया, आपको याद होगा, वैसे ये इन्फॉर्मेशन 2016 से इनकम टैक्स के पास, ठीक है, ये बात मैं बताऊंगा। मैंने कहा ना अमेंड करा गया, 285BB को अमेंड करा गया। ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सन 2016 से इनकम टैक्स के पास पहले से थी। कभी अगर किसी असेसी का नोटिस आया हो कि भैया आपके AIR में इतना कैश डिपॉजिट आ रहा है हमारे पास, और वो इन्फॉर्मेशन हमें SFT में शो नहीं होती थी पहले, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ कि उसके क्लाइंट का नोटिस आया हो और उसमें लिखा है कि आपके AIR में इतना कैश डिपॉजिट हो रहा है, और क्लाइंट कहता था अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपने तो हमें बताया नहीं। ITR में अगर हम कम डिक्लेयर करते थे, तो अगर हम ITR में कम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका एक नोटिस चलाता था कि AIR में आपका ज्यादा हो रहा था, और उस पर फिर वो 60% टैक्स लगाते थे प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी। वो उसको कहते थे आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, ये आपकी, आपने इनकम ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम का प्रोविजन लगा देते थे हमारे पास ITO साहब जो थे हमारे। तो ये चीज ना हो, ये चीज ना हो। जो इन्फॉर्मेशन असेसी की डिपार्टमेंट को मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन असेसी को भी मिल जाए तो क्या बुराई है, समझ रहे हैं? ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पता चला इनकम टैक्स क्लाइंट आया, वो सॉरी ITR करवाने के लिए हमारे पास एक क्लाइंट आया और बोला भाई साहब ये हमारा बैंक अकाउंट है और ये है और आप ITR कर दीजिए। फिर हमने उसका AIS डाउनलोड करा तो पता चला अरे इसने तो शेयर्स की ट्रांजेक्शन कर रखी है, अरे इसने तो लैंड परचेज सेल कर रखी है, या इसका तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका ये भी अकाउंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल रही है तो भैया हमें भी दे दो ना, ताकि हम भी ITR सही से फाइल कर सकें, असेसी भी ITR सही से फाइल कर सके। हो सकता है वो भूल गया हो सकता है उसे पता ना हो कि वो रेलिवेंट चीजें मेरे लिए, इसलिए ये AIS असेसी को प्रोवाइड कराना शुरू करेगा। ठीक है, अब हमारे पास तो AIS क्या है? AIS है डिटेल्ड, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या है? एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यानी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में सारी चीज आपको मिल जाएंगी जो जो इनकम टैक्स के पास है, विद ऑल डिटेल्स। ऑल डिटेल्स मतलब इवन ट्रांजैक्शंस भी शो हो रही है, ट्रांजैक्शंस भी शो हो रही है कि जैसे शेयर्स की अगर हम कहें तो शेयर्स की ट्रांजैक्शन वाइज कंप्लीट शो हो रहा है, कितने शेयर बेचे, किस डेट को बेचे, और उसका IN नंबर क्या था, और उसका सब चीजें शो हो रही हैं फिलहाल वहाँ पे, रेट भी क्या था। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, ये AIS की समरी है, ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की एक समरी है। और 26AS से हम पूरी तरह वाकिफ है। 26AS वो फॉर्म है जो हमें दिखना है, AIS तो हमें देखना पड़ रहा है। 26AS वो फॉर्म है जो हमें दिखना है। 26AS में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन AIS में आएगी वो 26AS में भी शो होनी चाहिए। प्रैक्टिकली दिक्कत आ रही है बट इन्फॉर्मेशन 26AS में भी शो होनी चाहिए। ठीक है, तो 26AS एक वो फॉर्म है जो हमें चाहिए। AIS और TIS ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्म। अब
हमारे पास अगला सवाल ये है कि AIS जो हमारा फॉर्म है इसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन शो होगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आने वाली है इसमें। बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आने वाली है। सबसे पहला TDS और TCS, जो भी हमारा TDS कटेगा, जो भी हमारा TCS कलेक्ट होगा, वो हमें सारा का सारा AIS में शो हो जाएगा। ये हमें 26 एज में भी शो होता है, मैंने बताया ना 26 एज में वो सारी इंफॉर्मेशन है कि जो आपकी AIS में आ रही है, बट 26 एज में कम आ रही है। दूसरा SFT, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट है, स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो है SFT। ये कहाँ स्पेसिफाई कर रखा है? ये स्पेसिफाई कर रखा है सेक्शन 285BA, सेक्शन 285BA। बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपने कुछ, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, आपने अगर ज्यादा कैश डिपॉजिट करेगा, आपने सुना होगा कि बैंक में जाते हैं 50,000 से ऊपर कैश डिपॉजिट करते हैं, पैन नंबर मांग लेता है, वो SFT में रिपोर्ट होती है। ठीक है, ये पहले से हो रहा है, नया नहीं है, मैंने आपको बताया ना, ये नया कुछ नहीं है, ये पहले से होता चला रहा है। आपका अगर सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट है और आप ITR फाइल, वैसे तो 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट है तो वो SFT में रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, दोनों ही चीज खरीदी या बेची, तो सब रजिस्ट्रार उसे SFT में रिपोर्ट करेंगे। पहले से होता आ रहा है, मैंने बताया नया नहीं है, पहले भी ऐसे होता था। उसके बाद अगर कोई FD वगैरह कराई है, अब तो स्पेसिफाइड लिमिट है इसका, तो SFT में रिपोर्ट होगी। अगर कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट करा है तो वो भी SFT में रिपोर्ट होगी। अगर कोई शेयर्स बेचे हैं वो भी, अगर शेयर्स खरीदे हैं वो भी, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स और या फॉरेन करेंसी। अभी मैंने एक क्लाइंट का डाउनलोड करा तो उसका फॉरेन करेंसी की भी डिटेल आ रही थी कि भैया इतने की फॉरेन करेंसी खरीदी है, सब डिटेल SFT में शो होती है, SFT में जाती है। SFT कौन से सेक्शन से कवर है? 285BA। उसके बाद है कैश पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी है, बट वो रिपोर्ट करता नहीं कोई प्रैक्टिकली, कैश पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कहता ना हम क्यों फंसे, वो एक अलग मैटर है। इसके बाद तो SFT में बहुत सारी और भी ट्रांजैक्शंस हैं जो यहाँ पर हमें रिपोर्ट करनी पड़ी। जो भी ट्रांजैक्शन SFT में रिपोर्ट हुई वो हमें AIS में शो हो जाएगी, जो कि पहले नहीं हुआ करती। समझ रहे हैं आप? TDS TCS पहले से दिखता आ रहा है, बट ये नहीं दिखता था। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी टैक्स आपने पे कर रखे हैं, एडवांस टैक्स वगैरह, वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। डिमांड एंड रिफंड, अगर कोई डिमांड है आपके ऊपर, ठीक है सर, इनकम टैक्स की कोई डिमांड है वो भी आ जाएगा, कोई रिफंड इशू वो भी आ जाएगा। 26 एज में भी शो होता था ये। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, ये एक नई चीज है यहाँ पे, कोई भी अगर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स आप पर चल रही हैं इनकम टैक्स में तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स भी शो हो जाएंगी। बस एक और चीज है इसमें, मैंने लिखना रह गया वो, डबल टैक्सेशन। अगर जैसे सेक्शन 90 और 90A में आपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया आप कहीं टैक्स दे आते हैं और वही इनकम आपकी यहाँ पर टैक्स हो रही है बिकॉज यू आर अ रेसिडेंट पर्सन, तो उसमें आपको डबल टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 90 ऑब्लिक, मतलब 90 और 90A, ये दो सेक्शन है। तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर कोई मिलती है उन्हें तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, वो भी हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन हमारी AIS में शो होगी। AIS से ऑटोमेटिकली वो फॉर्म 26 में चली जाएगी। कौन सा पार्ट में? पार्ट E। अब आपको सर TDS तो नहीं जाता पार्ट E में, हाँ TDS नहीं जाता, SFT का पार्ट है। पार्ट E जो है वो SFT का पार्ट है, SFT वाली। बाकी तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से 26 में शो होती आ रही है, तो पार्ट E SFT का है। बट अभी भी मैं कुछ केसेस में देख रहा था कि पार्ट E में केवल कैश डिपॉजिट की ही डिटेल आ रही है। पार्ट E जो है 26 एज का, उसमें केवल कैश डिपॉजिट की डिटेल आ रही है, बाकी की डिटेल्स वहां पर हमारे पास नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास SFT और ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सारी चीजें जो है बहुत ध्यान देने वाली चीज है। AIS, हम कोई भी ITR करते समय AIS को इग्नोर नहीं कर सकते। हम कोई भी ITR करते समय AIS को इग्नोर हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है जितनी शायद असेसी भी हमें नहीं दे पा रहा। अच्छा, ये बेटर है या गलत है AIS में डिटेल आना? बताइए, सिंपल सी बात, बेटर है या मतलब ये गलत करा इन्होंने डिटेल देके? मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर करा इन्होंने कि यहाँ पर डिटेल दी है ताकि हम अपनी ITR सही कर सकें। लेकिन इसमें अभी एक बहुत दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या आने वाली है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा पर्सनल, अभी हमें AIS में भी सारी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही है। अगर मैं कहूँ तो कई जगह ऐसा हो रहा है, क्लाइंट हमसे कह रहा है भाई साहब ये भी करा है मैंने, हम AIS खोल रहे हैं वहाँ नहीं है, हम वहाँ खोल रहे हैं वहाँ नहीं है। तो AIS में भी सारी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लूज पॉइंट हो सकता है। जो हमारा ऑथोराइज्ड पर्सन है
वो कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो उसे एसएफटी में मिल गई। हो सकता है उसने एसएफटी की फाइल नहीं करा, तो ये हमारे लिए प्रॉपर एविडेंस नहीं हो सकता। हो सकता है उस व्यक्ति ने एसएफटी फाइल नहीं करा, प्रिंसिपल जो हमारे ऑथराइज पर्सन है उन पे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, इसलिए वो एआईएस में नहीं पहुंची। दूसरी चीज, हो सकता है उन्होंने एसएफटी फाइल करा लेकिन वो गलत आईडी पर फाइल हो गया। बहुत सारे हमारे पास रीजंस हैं जिसकी वजह से एआईएस में इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो क्या ये हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस है कि सर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है? नो, ये प्रॉपर एविडेंस हमारे पास नहीं है। नहीं। हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन भी आ रही हो, ठीक है, तो हम इससे हेल्प लेंगे, लेकिन हम आईटीआर वही फाइल करेंगे जो सही इन्फॉर्मेशन है। इवन इसमें एक डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है, मैं क्लाइंट का मैं दिखा नहीं सकता, एक डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केवल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसी बेसिस पर है। आप आईटीआर वही फाइल करें जो सही डेटा है, आप वही डेटा फाइल करें, आप उस डेटा को चेंज ना करें, ठीक है। और अगर मैं कहूँ, अच्छा कोई क्वेरीज वगैरह हैं आपकी, बताएं। सागर, एक चीज मैं पूछ रही थी, क्या ये जो एआईएस है सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट देखने के लिए है बिफोर फाइलिंग आईटीआर? डू वी नीड टू सबमिट दिस? नहीं, हमें सबमिट नहीं करना, ये सिर्फ डाउनलोड कुछ नहीं करना? कुछ नहीं और करना। इसमें शेयर्स की एक एक डिटेल आ रही है, सेल, परचेज, Complete तो जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो वी नीड टू फाइल ईच एंड एवरी detail. Yes. detail of each and every share. If we have done 100 transactions in a year, then we need to file each and every. तभी फाइल करनी है। अभी मैं इसके बारे में मैं सोच रहा था एक टॉपिक कवर करने की, मैं कर नहीं पाया ये वाला। इसमें एक 2018 में एक सर्कुलर आया था जिसमें ये कहा था कि आप कंसोलिडेट एंट्री कर सकते हैं, बट ये अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसलिए आपको इसका स्टेटमेंट नहीं दे रहा कम्प्लीटली कि ये केवल लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे बस इतना सा डाउट है, ये केवल लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी है, मुझे इतना सा डाउट है। सर मेरे मुझे हिसाब से लॉन्ग टर्म में हमको शेयर्स की एंट्री करनी होती है, शॉर्ट टर्म में वी कैन एंटर द कंसोलिडेट एंट्री। शॉर्ट टर्म में शायद नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में हमको 31st क्या कहते हैं, हमें वैल्यू भी देनी होती है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के लिए, तो इसलिए उसमें शेयर वाइज एंट्री करनी पड़ती है हमको। अच्छा, लॉन्ग टर्म में शेयर वाइज है, शॉर्ट टर्म में नहीं है। या ओके, चलिए एक बार और कंफर्म करेंगे, मैं इस बारे में श्योर नहीं। तो वो कंसोलिडेट एंट्री वाला जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, इसका एक सर्कुलर है वो देखना पड़ेगा इसके बारे में। बाकी रही बात अभी की नॉलेज के हिसाब से, तो यस आपको रिपोर्ट करनी सारी एंट्री, ये हमारे साथ भी बहुत हो रही है। और क्या होता था, पहले हम ये अवॉइड कर जाते थे कई बार, इवन क्लाइंट कहता भी था तो भी हम अवॉइड कर जाते थे कि बाद में देखी जाएगी कौन सा कोई कंसोलिडेट कर देते कि एक शेयर्स के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, क्लोजिंग बैलेंस। अभी एक केस मेरे साथ भी हुआ इसमें का, जिसमें क्लाइंट ने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची और वो उसके एआईएस में शो हो गई। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, इसकी तो मैं डिटेल कहीं दे ही नहीं सकता। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो मैं उसको कहीं शो नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ा इस बात का कंफ्यूजन रहा, बट मैंने रिस्क लेकर उसकी आईटीआर फाइल कर दी, वो उसकी डिटेल मैंने नहीं दी। बट ये देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन आनी नहीं चाहिए थी एआईएस में, तो एआईएस कहीं कहीं डरा भी रहा है हमको ना थोड़ा सा, तो उसकी आईटीआर इस चक्कर में मैंने रोकी रखी। मैंने कहा यार क्या करूं, तो मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, फिर वही होता है लास्ट ऑप्शन। और किसी की कोई क्वेरी? सागर सर, ये ना प्रशंसा रस्तोगी इज आस्किंग अबाउट द सर्कुलर नंबर। आई एम नॉट श्योर, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मैं सर्कुलर निकाल के शेयर कर दूंगा, उस पर एनालिसिस भी करके कर दूंगा मैं शेयर, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि मेरा इसका डिस्कशन कल एक से हुआ था, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, तो मैं ये सोच रहा था आज इस पॉइंट को कवर कर लूंगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने जो बनाया था मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पे, बट ये एंड में मैंने काट दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? Sure. और कोई क्वेरी? किसी मेंबर्स को क्वेरीज है प्लीज? चैट्स में तो बहुत सारे हैं। अच्छा, चैट्स में सारे, चैट्स में एक्चुअली मेंबरशिप नंबर। और कोई क्वेरी है किसी को? बाकी आईटीआर बहुत ध्यान से भरनी है, बस इस चीज का खास ध्यान रखें, जो भी अमेंडमेंट्स हैं कुछ भी हैं। और एक चीज और, अब तो फेसलेस होता चला जा रहा है, सब कुछ फेसलेस हो गया इनकम टैक्स में। कोई भी गलती अगर होगी तो असेसी आप ही के पास आएगा, कहेगा भैया आपने क्या किया। जीएसटी में बहुत जगह ये चीज देखने को मिल रही है, प्रैक्टिकली भी मिल रही है बहुत ज्यादा, कि काउंसिल की गलती की वजह से असेसी को परेशानी हुई, तो असेसी ने काउंसिल पर ही डाल दिया कि भाई आप ही इसको देखो, मुझे नहीं पता इस बारे में, ठीक है? तो प्रैक्टिस करने में हमें ये चीज बहुत ध्यान देनी है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या इसमें आ रही है तो प्लीज आस्क इट फ्रॉम द क्लाइंट, और बेटर होगा उसका जो भी रिप्लाई है वो नोट कर ले, बाद में हमें भी याद नहीं रहेगा कि उसने क्या कहा था। मैं तो प्रैक्टिकली ऐसा ही करता हूँ, जो भी वो रिप्लाई करता है उसको मैं नोट कर लेता हूँ, भाई ये रिप्लाई उसने दिया कि हमारा नहीं है,
या इन्फॉर्मेशन हमें उसने प्रोवाइड नहीं करी, बेटर वही, क्योंकि आने वाले टाइम में असेसी भी बहुत होशियार हो गए हैं, वो कहेंगे भैया काउंसिल की गलती है जो है, हमारी कोई गलती नहीं है। इस चीज़ का भी हमें बहुत प्रैक्टिस में ध्यान देना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती चली जा रही है, लॉज डे बाय डे अमेंड, कितना ज़्यादा अमेंडमेंट आता चला जा रहा है, जीएसटी में देख लिए या इनकम टैक्स में देख लिए। और कोई सर क्वेरी किसी की? सर अभी टाइम है तो क्वेरी पूछ लेता हूँ। एक हाँ। ITR है AY 2021 की, ठीक है। वेरीफाई कर चुके हैं, टाइमली फाइल हुई है, टाइमली ई वेरीफाई हुई है थ्रू आधार OTP, लेकिन अभी तक भी वो प्रोसेस नहीं हुई है, उसमें रिफंड भी ड्यू है ना, उसका इंटीमेशन आया है। सो व्हाट शिल वी डू? आई हैव सबमिट द ग्रीवेंस आल्सो, मेरे हिसाब से तो ग्रीवेंस सबमिट ग्रीवेंस डाल दिया, 1 महीने से ऊपर हो गया, नो रिस्पांस। टेक्निकल इशू टेक्निकल इशू, इसके बारे में वैसे तो ज्यादा बेटर है आप ग्रीवेंस ही डालें, ग्रीवेंस का ही वेट करें, वहां से रिप्लाई कुछ ना कुछ आएगा जरूर। बाकी ये एक टेक्निकल इशू है कि वहां पे प्रोसेस नहीं हो रही है। एक्चुअली एक मेरा भी केस है इसमें का, एक क्लाइंट का रिफंड था लास्ट ईयर का, तो रिफंड में उनका रिफंड फेलियर हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल गलत बता रहा था वो, या बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं था। अब जब नया पोर्टल बना उसकी ITR ही गायब हो गई वहां से, फिर 2 महीने बाद तो ITR शो हुई वो, बिल्कुल। चलिए ITR शो हुई तो मैंने उस पर रिफंड रीइश्यू का लगाया, और आज तक वो पेंडिंग है रिफंड रीइश्यू का। उसका मैंने ग्रीवेंस भी डाल दिया है, अभी तक उसका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो ग्रीवेंस से अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, मैंने 3-4 ITRs में ग्रीवेंस डाली है, 1-1.5 महीने से ऊपर हो, किसी में कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। जी, कोई रेस्पॉन्स हमारे पास इसलिए नहीं आ रहा है कि पहले वो सॉफ्टवेयर ही ठीक करा ये भी कह सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। DSC से का ही एक टेक्निकल इशू है, सागर से मैंने डिस्कस किया था, वो भी अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। DSC का नहीं हो पाया वो सॉर्ट आउट, 2 DSC नहीं, एक टोकन में 2 DSCs वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा वो एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट कर रहा। आई हैव डिलीटेड वन DSC फ्रॉम द टोकन। डिलीट करना पड़ गया, नुकसान करा। क्या करें? नहीं, टेक्निकल इश्यूज बहुत आ रहे हैं, बस बहुत मुझे ज्यादा। एक ही बात समझ में नहीं है, अगर किसी के पास जवाब हो तो प्लीज दीजिएगा, ये नई वेबसाइट बनाई क्यों? बस एक इसी बात का मुझे जवाब नहीं मिला, क्या वो जरूरत किसी को नहीं मिला। ये क्यों बनाने की जरूरत थी? अगर AIS के लिए बनाने की जरूरत थी अरे तो पुरानी वेबसाइट पे नहीं आ सकता था क्या? कौन सा इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड है? SFT पुराना है, कोई भी ऐसी Yes, नहीं SFT is old. AIS में आ रही हो, बस क्या करा, वो इन्फॉर्मेशन पहले AO को शो होती थी, अब हमें शो होने लगी, बस इतना सही तो करा, तो वो तो पहले भी हो सकता था ना, बिल्कुल। पहले भी हो सकता था। इवन पहले भी कंप्लायंस पोर्टल पे SFT वगैरह तो दिख जाता था वहाँ पे, लेकिन वो बाद में देखते थे, एक अलग मैटर है, पहले नहीं दिखते थे इस चीज को। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि नई वेबसाइट क्यों बनाई, मे बी इंटरलिंक करा GST या अब खैर क्या कहें एज ए Don't know, yeah. और कोई क्वेरी किसी की? तो समय हमारे पास थोड़ा सा बचा है, मैं तभी कह रहा था कि टॉपिक थोड़ा सा ये जो है मैंने बहुत ज्यादा नहीं सागर, आप हमारे साथ है ना अभी 6 बजे तक, तो हम हाँ। आयुष अग्रवाल को ले लेते हैं, बिल्कुल, और जैसे बिल्कुल। जैसे क्वेरी आएंगी हम आपको श्योर याद करते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। परिमल, Yeah. So Ayush sir, you are there? या परिमल। Yeah. Okay. मैं So stop yeah, आप stop कर दीजिए. हम्म, So yes, everyone, let me now introduce you all to a second speaker for today's meeting, a very young and dynamic CA Ayush Agarwal sir from Rampur, and he is basically from Rampur but currently working in Delhi. So he has qualified CA in November 2018 and also holds a bachelor's degree in commerce. He has worked with OBT Textiles Private Limited Rudrapur as assistant manager in the field of internal audit for almost 2 years. And presently, he is working with Deloitte Haskins and Sells LLP as a consultant in the same field of risk advisory since February 2021. Today, he would be speaking on the topic enhancing the effectiveness of internal audit and opportunities for CAs. So I think this is one of the most unexplored areas in Moradabad, but in small cities, internal audit. हम बिग सिटीज में देखते हैं एवरी क्लाइंट इज मतलब फॉलोज दिस, इस चीज को करवाता है, लेकिन स्मॉल सिटीज में बहुत कम फॉलो करते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है हम लोगों के लिए. सो लेट मी वेलकम यू आयुष सर, बहुत नॉलेज मिलेगी शायद हमें आज, प्लीज. सो थैंक्स परिमल, सही कहा, बहुत स्कोप है इसका इंटरनल ऑडिट का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मुरादाबाद ब्रांच फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन इंटरनल ऑडिट. थैंक्स CA Mani Gupta ma'am. So today my topic is enhancing effectiveness of internal audit and opportunity for CAs. So as we know, auditing is divided into 2 parts, basically external audit and internal audit. So external audit is the requirement of law
as per Companies Act and as per other acts as applicable to the assessee, to the organizations. However, internal audit is also applicable as per statutory laws such as Section 137, 138 of Companies Act. However, it is also the requirement of management. So why it is required to the management? Because it is a consulting activity. It is not pure, it is audit, but however, it is now it has become more about the audit. So अभी क्या हो रहा है कि इंटरनल ऑडिट में केवल ऑडिट ना होके कंसल्टेंसी जुड़ गई है, इसीलिए इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही है और क्लाइंट्स के लिए इसकी नीड बढ़ती जा रही है. ऑन दी अदर हैंड स्टैट ऑडिट में क्या होता है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. तो दैट इज द कंपल्शन फ्रॉम द लॉ, पर्सन के लिए, कंपनी के लिए, फर्म के लिए ये एज पर लॉ रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको फोर्सफुल लगता है कि हाँ ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट है. बट इंटरनल ऑडिट क्या होता है, आज मैनेजमेंट अपने खुद से कराता है सो दैट कि उसको समझ में आ सके कि हमारे फ्लॉज कहाँ पे हैं, वीकनेसेस कहाँ पे हैं, हमारे सिस्टम में कमियां कहाँ पे हैं, जिसको हम इम्प्रूव कर सकें टाइमली, अपना रेवेन्यू लीकेज रोक सकें और अपनी एफिशिएंसी को, अपनी इफेक्टिवनेस को, अपनी प्रोडक्टिविटी को और अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट का जो गोल है उसको मीट आउट कर सकें. सो अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिट की, सो इंटरनल ऑडिट इज एन अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन. मतलब इसमें केवल हमारा फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, टीडीएस कंप्लायंस, टीडीएस कटा नहीं कटा, ये सब देखना ही पर्याप्त नहीं होता. इसमें हमें इनटू द ऑपरेशन जाना पड़ता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, लाइक प्रोक्योरमेंट, देन रिसीविंग ऑफ गुड्स, लॉजिस्टिक्स and production, whole planning of production planning, controls, engineering part, logistics, finance and accounts, ultimately R2R, report to record. So and also it is a consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. And also given by definition given by Institute of Internal Auditor, internal audit is providing assurance on organizations governance, internal control and risk management. So what is internal control? Internal control is set of controls and set of designs that is required in an organization to control and to mitigate the risk arising due to some fraud, error, human error, systematic error. And risk management is the analysis of risk, going into the depth of the risk. What are the risks? What are the controls? And what are the governance? So अब ये समझते हैं कि ये तो इंटरनल ऑडिट के बारे में बेसिक हो गया जो मैंने डेफिनेशंस बताई, बट क्यों इंटरनल ऑडिट की आज इफेक्टिवनेस बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और इंटरनल ऑडिट की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो माय कलीग्स, आई वुड से इंटरनल ऑडिट इज द मोस्ट अनरेटेड एरिया फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर मैं बात करूं CA in 2025, if I talk about CA in 2030, so it will be the area that will give you highest revenue for every CA, whether in job, whether in consulting, whether in a practice. क्यों? क्योंकि आज आप फॉरेन कंपनीज का देखेंगे, इंडिया में सेटअप्स आ रहे हैं, so they want concrete system in the company. So पहले ये समझा जाता था कि इंटरनल ऑडिट जो है बड़ी बिग कंपनीज का ही मैटर है, बड़ी कंपनीज फॉलो करेंगी, बट अब इसका सिग्निफिकेंस बड़ी कंपनी से शिफ्ट होते होते मीडियम एंड स्मॉल साइज कंपनीज की तरफ बढ़ता जा रहा है. सो मुरादाबाद एंड रामपुर काइंड ऑफ सिटीज में इसका इंपॉर्टेंस आज आई नो बहुत ज्यादा नहीं है, बट इन द कमिंग ईयर्स इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा. और दैट इज द अपॉर्चुनिटी वो जो हमारे डोर्स पे है, जिसको हम बहुत जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं. सो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का एक एरिया खुलता जा रहा है, or it is more remunerative than any other practice of compliance, taxation and others. So because it is giving revenue in lakhs and crores. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप क्यों इतना रेम्यूनरेटिव बनता जा रहा है, क्यों इतना अपॉर्चुनिटीज ये के लिए वास्ट है. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे सपोज हम एक बड़ा सा पॉश एरिया में प्लॉट लेके एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, हम उसमें करोड़ खर्च करते हैं. उसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, एक बढ़िया से डिज़ाइन ड्राफ्ट कराएंगे, और वो डिज़ाइन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. उसका सब आर्किटेक्ट से और कंसल्टेंट से उसके लिए पूरा मैप बनवाते हैं. उसके लिए हम 1 लाख रुपए भी उसको पे कर देंगे इजीली, 2 लाख भी पे कर देंगे, अच्छे अमाउंट पे कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं होगा. बट जब हम उसका ही नक्शा पास कराने जाएंगे
किसी लीगल एडवाइजर के पास, तो हम उसको थाउजेंड्स भी देने में थोड़ा सा संकोच करेंगे, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी और कम पैसों में काम हो जाए। सो यही चीज़ है, इंटरनल ऑडिट जो है फील्ड एडवाइजरी फॉर्म में आ चुकी है। सो जब हम एडवाइजरी की बात करते हैं, कोई भी क्लाइंट है, 100 करोड़ का बिजनेस है, 200 करोड़ का बिजनेस है, तो अभी क्या है कि वो इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट उसके पास नहीं है ज़्यादा, बट फ्यूचर में आएगी और वो आपको अच्छे से अच्छा रेमुनरेशन देने को तैयार होगा एज कम्पेयर टू द कंप्लायंस प्रैक्टिस। क्योंकि इनकम टैक्स की कंप्लायंस, बाकी कंप्लायंस में क्या है, नो डाउट वो कंप्लायंस हमेशा रहेंगी, बट रेमुनरेटिव फॉर्म में कहें तो ये आपको बहुत अच्छा रेमुनरेशन देने वाला है। इसके कुछ और भी कारण हैं, क्योंकि इसका सीधा बेनिफिट हमारे क्लाइंट को मिलता है, हमारे कंपनी को मिलता है, क्योंकि एफिशिएंसी, इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि एफिशिएंसी एनहांस करना, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली ऑपरेशन को हिट करता है, ऑपरेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो इंटरनल ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड टू प्रोवाइड द एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। So like I'm giving example of P2P, that is procurement to pay. So जब एक ऑडिटर procurement to pay ऑडिट को समझेगा, उसको स्टार्ट करेगा उसकी प्रोसेसिंग को, सो वो एंड टू एंड प्रोसेस को एनालाइज करेगा कि वेंडर सिलेक्शन का हमारा क्या प्रोसेस है, वेंडर कोड क्रिएशन का क्या प्रोसेस है, वेंडर की ऑर्डरिंग का क्या प्रोसेस है, हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, क्या हम उसी पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं जो बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस पे दे रहा है। सो एक्चुअली क्या होता है कि आजकल द ओनर ऑफ द बिजनेस, या यू कैन से मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, can't run the whole business on its own, so they have to dependent on their employee staff. So वहाँ पे क्या होता है कि हमें सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, हम का मतलब है मैनेजमेंट को या ओनर ऑफ द बिजनेस को सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और उन सेट ऑफ रूल्स को हम एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके बेस पे ही हमारा पूरा सिस्टम चलता है, उसके बेस पे सारे काम होते हैं। तो वो ढूंढना मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हमने कहा कि प्रोक्योरमेंट जो है इस सेट ऑफ प्रोसेस से होना चाहिए कि इतने रेट के अराउंड माल आ जाना चाहिए, तो क्या उतने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ज़्यादा पे आ रहा है तो उसके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि नहीं है। तो ये काम कौन देखेगा, ये काम स्टैट ऑडिटर नहीं देख पाता है। उसका काम क्या होता है, उसका काम लिमिटेड होता है, अपने सेक्शंस में घूमकर 139 से लेके जो भी सेक्शन स्टार्ट होते हैं वहां से लेके घूम तक अपनी लायबिलिटी पूरा करना, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को देखना। बट एज एन इंटरनल ऑडिटर का काम होता है एफिशिएंसी को चेक करना कि जो काम हो रहा है वो प्रॉपर एफिशिएंसी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे हम बात करते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन रूट मैनेजमेंट। सो ट्रांसपोर्टर का जो रूट मैनेजमेंट होता है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू लीकेज एरिया होता है फॉर अ कंपनी। सो हमेशा एक ओनर ऑफ बिजनेस ये चाहेगा जानना कि क्या उसका रूट प्लानिंग प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ लेकुनास हो और उसकी वजह से उसका रेवेन्यू लीकेज हो रहा हो। सो ये सारा काम होता है इंटरनल ऑडिटर का। तो हम बीइंग अ सीए आज ये अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं कि सर देखिए आपकी कंपनी में से 100 करोड़ का टर्नओवर है, 50 60 70 एम्प्लॉइज हैं एज ऑफ नाउ, बट क्या हो सकता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस भी एनहांस हो सकता है, आपके एम्प्लॉय भी एनहांस हो सकते हैं, आपका प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सो उनको ये रिकमेंडेशन देना कि ये आपकी एक प्रोसेस है, you can have this process in your company, in your organization, so that you will get some benefit out of it. So हमें उनको ही बताना पड़ेगा कि सर देखो अगर आप ये एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपको शायद इतने लाख रुपए का लॉस हो सकता है। You can give them comparative figure. So केवल एफिशिएंसी ही और एक प्रोसेस का इंप्रूवमेंट ही नहीं, अदर बेनिफिट अगर बात करें तो होगा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स। सो लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं प्रोक्योरमेंट की बात करूं तो प्रोक्योरमेंट में एक डॉक्यूमेंट बनता है परचेस ऑर्डर। सो इंटरनल कंट्रोल मतलब ये हो गया कि हमारे सिस्टम फुल प्रूफ होने चाहिए ताकि कंपनी स्मूथली चले, एज पर दी डिजाइन स्टैंडर्ड चले जो कि सेट किए हुए हैं मैनेजमेंट ने, और जो कि एज पर गुड प्रैक्टिस होते भी हैं। तो जैसे पीओ है, तो पीओ में कभी कभी, जैसे मैं आपको इंस्टेंस बताता हूँ, कभी ऐसा हो जाता है कि सेम डे पे सेम वेंडर को पीओ इशू हो गया डिफरेंट रेट पे, या सेम डे पे पीओ इशू हो गया 2 डिफरेंट वेंडर को सेम गुड्स के लिए डिफरेंट रेट पे। क्यों हो रहा है भाई? तो ये सारा काम देखना होता है इंटरनल ऑडिटर को। सो ये डीप स्टडी होती है जब हम अपनी मैथोलॉजी परफॉर्म करते हैं ऑन द ग्राउंड, तो हम ये फाइंड करते हैं कि ऐसा कोई इंस्टेंस तो नहीं मिल रहा है। या प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में अगर बात करें
तो कंट्रोल्स क्या है, जैसे सपोज कभी कभी क्या होता है कंपनीज में स्टॉक पड़ा हुआ हमारे पास, फिर भी हम बनाते जा रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारी इंटरलिंकिंग नहीं है कि जो हमारा फिजिकल स्टॉक पड़ा है उसकी और सिस्टम में स्टॉक जो पड़ा है उसकी, या फिर जो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास उसके प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं है, तो दे आर सम लैकुना इन द सिस्टम ऑफ द कंपनी। सो ये काम किसका है? इंटरनल ऑडिटर को देखना, ताकि ओवर एक्सेस इन्वेंट्री ना हो, एक्यूरेट इन्वेंट्री बनी रहे। सो नेक्स्ट बेनिफिट ये हो सकता है इंटरनल ऑडिट करने का, आईटी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम आईटी थ्रेट्स। सो एज यू ऑल नो, आज आईटी के बिना वी कैन से नथिंग इज पॉसिबल। सो हम आज हमें कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी है तो आईटी का यूज कर रहे हैं। सो आईटी इज दी, आई कैन से विल बी दी नेक्स्ट कैन से, मतलब लाइक कि इंटरनेट और आईटी जो है ना, वो हवा पानी की तरह होता जा रहा है हमारे लिए। सो आईटी कंट्रोल्स आज हर कंपनी में है, आईटी सिस्टम हर कंपनी में है, तो उसमें चेक करना कि प्रॉपर सिस्टम कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, कि जो पर्सन अप्रूव करने के लिए ऑथराइज है, क्या सिस्टम में वही पर्सन अप्रूव कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिस्टम में राइट 4 लोगों को मिले हुए हैं और मैनेजमेंट का मानना ये है कि हमें राइट 1 को दिया गया है। तो ये लैकुनास मिलते हैं। सपोज कभी कभी क्या होता है कि हमने एसएपी इंप्लीमेंट करा, एसएपी की टीम आई मैनेजमेंट के पास गई कि सर ये बताओ कि वाउचर एंट्री जो है, अकाउंटिंग एंट्री पास करने का राइट किसके पास है, किसको देना है। तो हमने उसको दे दिया राइट, मान लो फाइनेंस हेड को, बट हमने एसएपी में जाके देखा कि उसके एग्जीक्यूटिव को भी राइट्स मिला हुआ है, क्योंकि एसएपी वाले ने गलती क्या कर दी कि उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा, सबको राइट दे दिया। ऐसा हो जाता है। सो आईटी कंट्रोल्स को चेक करना, वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट, दे आर एफिशिएंट और नॉट, एंड what are the IT controls we can, so कुछ systems ऐसे हैं जो कि हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं, कि सपोज कि इतना मैनेजमेंट को लिमिट डिसाइड करी, लाइक कि 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन होगा तो उसके लिए ये प्रोसेस होगा, उसके बिना ही काम नहीं हो सकता, कोई भी काम हो सकता है। तो वहाँ पे आईटी का इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा रोल है। तो ये सब चीज़ें ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके अलावा नई प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं जो कि नहीं हो रही है कंपनी में बट आगे हो सकती है एज पर दी स्टैंडर्ड नॉर्म्स, तो वो काम इंटरनल ऑडिट रिकमेंड कर सकता है, हम उनको बता सकते हैं, और उसके बेसिस पर क्या हो सकता है, उनके बहुत कॉस्टिंग भी बच सकती है हमारे क्लाइंट की, और उनकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, और साथ ही उनका जो एक कहें कि स्टैंडर्ड बन जाएगा, और उसके बेसिस पर उनकी हमेशा उनके पास स्कोप बना रहेगा कि वो ग्रोथ कर सकते हैं। वरना क्या होता है ना, जैसे छोटे क्लाइंट्स की हम बात करें तो उनके पास क्या होता है, वो छोटे क्यों रह जाते हैं। आप ये देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज 40 साल 50 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अडानी ग्रुप 40-50 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और शायद एक छोटा जो क्लाइंट होता है वो 40 साल में इतनी छोटी जगह रह जाता है। क्यों? डिफरेंस किस चीज़ का? डिफरेंस है प्रोसेस का, सिस्टम का। वो सिस्टम सिर्फ अपने हाथ में रखता है। वो पर्सन छोटा क्लाइंट होता है, 70-80-100 करोड़ का क्लाइंट का है या 200 करोड़ का क्लाइंट का है, वो सारी चीज़ें चाहता है कि मेरे हाथ में रहें। बट जब आपको कंट्रोल अपने हाथ से निकाल के आपके स्टाफ के हाथ में देना है, एम्प्लॉय के हाथ में देना है, तभी आप ग्रो कर सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में, आप लैक्स ऑफ करोड़ में तभी आप जा सकते हो। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास प्रॉपर एसओपी होना चाहिए, आईटी कंट्रोल्स होने चाहिए, और उसको चेक करने के लिए आपके पास इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए। तो ये कंसल्टिंग एक्टिविटी है, साथ ही इंटीग्रिटी इससे मेंटेन रहती है। फ्रॉड रिस्क जिसकी हम बात करते हैं, जैसे एनरॉन का केस हुआ था यूएस में 2001 के अराउंड, आई गेस 2001 और 2, बहुत फेमस केस था, जिसमें एक वन ऑफ द बिग कंसल्टिंग फर्म आर्थर एंडरसन बैन हो गई थी। सो ये फ्रॉड्स क्यों हुए? या इंडिया में सत्यम का केस हुआ, इंडिया में भी किंगफिशर का केस हुआ। तो ये फ्रॉड्स हुए हैं क्यों है कि लैक ऑफ ऑडिटिंग बाय द समवन एल्स। तो स्टैट ऑडिटर क्या होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाता है कि उसकी कुछ इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, उसको सर्टेन सेट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलना होता है, ट्रू एंड फेयर देखना होता है, वो निकल जाता है। बट इंटरनल ऑडिटर उससे कुछ अपार्ट काम करता है, वो ऑपरेशंस में जाता है, डेप्थ में जाता है। सो हमारा अदर बेनिफिट अगर बात करें तो क्या है, इंटीग्रिटी, टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस। हम फ्रॉड रिस्क से बच सकते हैं अगर हम आईए को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। आईए मींस इंटरनल ऑडिट। सो इंटरनल ऑडिट हमारे फ्रॉड रिस्क को करता है। सो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जब एनरॉन का केस हुआ था यूएस में, तो उसके बाद इस पर डिटेल में चर्चा हुई, और यूएस में इसकी चर्चा हुई, इसमें सॉक्स का लॉ बना, जिसको आपने शायद सुना होगा, सॉक्स कंप्लायंसेस काफ़ी चलता है। तो इसी के बाद ये केस बना था, लॉ बना था, एंड एक प्रोविजन भी आया था, एक फ्रेमवर्क आया था, कोसो फ्रेमवर्क। सो वो रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क एडवाइजरी से रिलेटेड फ्रेमवर्क होता है। सो दैट इज इंट्रोड्यूस आफ्टर द एनरॉन केस।
तो अभी क्या है कि अगर हम बिजनेस में इंटरनल ऑडिट इफेक्टिव सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरनल ऑडिट को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बेनिफिट क्या होगा कि हमारा फ्रॉड रिस्क के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे, मिटिगेट होते जाएंगे। सो जैसा मैंने बताया कि एक फ्रॉड रिस्क नहीं होता, और भी रिस्क होते हैं लाइक फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। सो अगर हम इंटरनल ऑडिट को इफेक्टिवली अप्लाई करते हैं इन आवर कंपनी, सो बेनिफिट होता है कि हमारे फ्रॉड रिस्क के साथ साथ अदर रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कोई लीगल रिस्क है, वो भी बच जाता है। सो ऑडिटर का, इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है? सारे प्रोसेस को कवर करना, एज ऑलरेडी टोल्ड यू। तो उसमें एक प्रोसेस ये भी होता है कि हम फाइनेंस में जाते हैं, फाइनेंस का भी आईए करते हैं, लीगल डिपार्टमेंट अगर किसी कंपनी में अलग है तो लीगल डिपार्टमेंट का भी आईए करते हैं, ट्रेजरी का करते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लीगल डिलेज तो नहीं हो रहा। तो अगर हमारा स्टैट ऑडिटर का काम क्या हो गया, अगर मान लो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, वो उसकी अपनी अकाउंटिंग कर देगा, रिकॉर्डिंग कर देगा, ट्रू एंड फेयर देख लेगा और कारो देख लेगा, दैट्स इट। बट हमारा काम क्या होता है भाई, 1 लाख रुपए गए क्यों, ये बताओ। हम एम्प्लॉय के, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट पहुंचेंगे, मैनेजर जो कंपनी का मैनेजमेंट है या ओनर है वो तो बैठा हुआ है कहीं और, हम उसकी प्लांट पे गए, उसकी लोकेशन पे गए, हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कहा भाई 1 लाख रुपए के क्यों हुए, हमें इसकी डिटेल्स चाहिए। तो वेदर इट इज ड्यूली अप्रूव्ड और नॉट, नहीं अप्रूव हुआ है तो व्हाट आर दी सर्कमस्टांसेस, अगर उसमें कोई उसमें प्रॉब्लम है तो वो हो सकती है, हम उसको मैनेजमेंट को एनालाइज करके बता सकते हैं कि ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ वर्क यू आर लूजिंग 1 लाख रुपीज इन अ ईयर और वट एवर इट इज। तो ऐसी ऑपरेशनल लॉस होते हैं कि सपोज हमारे पास एक ऑर्डर था, वो हमारा ऑर्डर जो है सपोज 1 लाख क्वांटिटी का था, बट हमारा 80,000 डिलीवर हो पाया, क्यों पाया, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉर्टनेस। एंड एक और एग्जांपल हो सकता है लाइक कि हमने क्या किया कि सपोज प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद हमारा रिजेक्शन आ रहा है, बट हम रिजेक्शन के बाद भी वही मटेरियल बनाते जा रहे हैं, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आया, और कस्टमर कंप्लेन भी हो सकती है कि उसकी हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट आर द एक्शन टू बी टेकन बाय द क्वालिटी डिपार्टमेंट वंस वी गेट सम क्वालिटी इशू ऑन द प्रोडक्ट। सो हमें ये देखना होता है कि कस्टमर कंप्लेन ओवर द पीरियड कितनी है, फिर उसका एनालाइज करना होता है कि कस्टमर कंप्लेन के रीजंस क्या हैं, उसका ट्रेंड एनालिसिस हम कर सकते हैं लास्ट ईयर से, और वो फिगर हम मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि सर देखिए ये आपका 5 ईयर्स का कस्टमर कंप्लेन का डेटा है, इसमें इतने परसेंट ग्रोथ हो रही है, तो हम बताएंगे। ग्रोथ नहीं हो रही है तो हमारे लिए मेटेरियल ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है तो मेटेरियल तब हो सकता है कि अमाउंट में सिग्निफिकेंट है, नंबर ऑफ केसेस शायद कम हो बट अमाउंट में सिग्निफिकेंट है, दैट वी विल रिपोर्ट इट। सो these are the biggest benefit which I have highlighted here. So इसीलिए इन सब फैक्ट्स को when we consider at a broad level, तो हम ये पाते हैं कि पिछले 20-30 years में, 2-3-4 decades में इंटरनल ऑडिट का जो एरिया है that is growing at a rapidly speed. So like other areas like investment banking, investment strategy, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब एरियाज हैं कंसल्टिंग के जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी एंड क्लाइंट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो हम दोनों काम इसमें कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। सो इंटरनल ऑडिट उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बिग सिटीज में, हम दिल्ली मुंबई की बात करें, बेंगलोर, कोलकाता, गुड़गांव, यहाँ पे हर एक कंपनी का अभी क्या हो गया है, इंटरनल ऑडिट का जो बिग कंपनीज हैं, इवन 200-250-300 करोड़ की कंपनीज ने अपने खुद के इन हाउस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए हैं। सो अब क्या हो रहा है, 2-4 स्टाफ को अपने रखते हैं और आइए क्रिएट करते हैं। पहले क्या होता था, ये एक्टिविटी होती थी, ठीक है, वंस एन ईयर हो गई, हाफ ईयरली हो गई, क्वार्टरली हो गई, बाहर से ऑडिटर आया, 2 आर्टिकल भेज दिए और उसने रिपोर्ट बनाई और सबमिट कर दी। बट अभी क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टाफ को भी हायर कर रहे हैं, साथ साथ ही आउटसाइड टीम को भी हायर कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट कि हमारा कोई भी रेवेन्यू लीकेज एरिया हमसे निकल नहीं जाना चाहिए। तो अभी क्या है अपॉर्चुनिटी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे, जो जॉब में जाना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं, अगर कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स में से है तो उनके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, और जो प्रैक्टिसिंग है उनके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। दे कैन मैनेज देयर क्लाइंट्स इन आवर एरिया जिसमें वो प्रैक्टिस करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ मुरादाबाद की, रामपुर की या इसके आसपास के एरियाज की, वहाँ के क्लाइंट को कन्वे कर सकते हैं कि सर ये देखो, ये आपकी अभी ये इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है, और अगर आपको ग्रो करना है तो यू विल हैव टू बी सिस्टमैटिक, यू विल हैव टू फॉलो द समथिंग। और इसमें
वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनसे कहते हैं ना सर जीएसटी ऑडिट करवा लो, जीएसटी ऑडिट कर हटा दिया सरकार ने, लेकिन हम उनसे कहते हैं ना कि ये फला कंप्लायंस आ गई है, ये करनी है, तो कहेंगे यार ये सरकार भी ना करती रहती है सुबह शाम, सीए साहब को पैसे देने का ही तरीका है। बट यहाँ पे उनका खुद का फायदा हो रहा है और हमारा भी फायदा हो रहा है, तो हम उनको कन्वे कर सकते हैं। और डेफिनेटली अभी इस चीज को लिया जाएगा, क्योंकि पहले की कंपैरिजन में आज की बिजनेस चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। पहले आदमी सोचता था ठीक है मैं अपनी सारी चीजें खुद से मैनेज करूंगा, लेकिन आजकल का सिनेरियो क्या हो गया है, बिजनेसमैन ये चाहता है कि भाई लेट मी फोकस ऑन द बिजनेस, और जो बाकी काम है ना वो हमारे कंसल्टेंट करेगा, चाहे वो कंप्लायंस हो गई, चाहे वो लीगल केसेस हो गए, चाहे वो हमारी स्टाइट तो खैर बाहर को करना पड़ता है, आईए वाला भी काम जो है या बिजनेस के इम्प्रूवमेंट का काम भी अब दे रखा है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें केवल हिस्टोरिकल डेटा पे जाके एनालाइज करके उनको एक रिपोर्ट बना देना ही काम नहीं होता। इसमें अभी क्या हो रहा है कि रिस्क एडवाइजरी, जैसे मेरी प्रोफाइल है हमारे बिग फोर्स में, अब इसका डिपार्टमेंट का नाम इंटरनल ऑडिट नहीं है, रिस्क एडवाइजरी है। क्यों? इसमें एरिया एनहांसमेंट ये हो रहा है कि हमें उनको एडवाइस करना पड़ता है कि भैया आपके इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है इन योर प्रेजेंट सिस्टम, सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू in your current business, in your current process, considering the industry norms, industry best practices. So वो हम लोग करते हैं, सजेस्ट करते हैं। so ये एरिया है, इसमें होता है। और साथ ही एक इसमें आजकल तो बिग फोर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और होपफुली ये बाकी क्लाइंट्स और बाकी जगह भी इसको जल्दी से एक्सपेंड होने में टाइम नहीं लगेगा, एसओपी ड्राफ्टिंग का और एसओपी इम्प्लीमेंटेशन का वर्क। सो most of the companies are not having their own SOP right as of now. So अभी बिग फोर्स के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनका वो SOP तैयार कर रहे हैं, so उसके लिए वो करोड़ चार्ज करते हैं। सपोज उनके 14-15 SOP हैं तो 2-2.5-4 लाख रुपए पर SOP के हिसाब से करोड़ में वो चार्ज कर रहे हैं। so उनकी बिलिंग करोड़ में हो रही है और कुछ ही महीने का असाइनमेंट है, ठीक है जो भी है। बट अभी क्या हो सकता है, SOP का जो फॉर्मलाइज वे है वो और भी सिटीज में फ्लो कर सकता है, और हमारे लिए डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको हिट करें और उसको ग्रैब करें। सो मैंने ब्रॉडली एक आई कैन से ग्लिम्स दे दिया कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं सीए के लिए और कैसे हम उसको ग्रैब कर सकते हैं। हमें क्लाइंट को कन्विंस करना होगा, कन्विंस मतलब हमें सबसे पहले उसको बेनिफिट्स बताने होंगे, ठीक है। सो हम जब इंटरेक्ट करते हैं अपनी डे टू डे बिजनेस में ड्यूरिंग आवर ITR कंप्लायंसेस, ड्यूरिंग आवर स्टैट ऑडिट, ड्यूरिंग आवर अदर प्रोसेसेस, तो क्लाइंट को ये चीजें हम इनिशिएट करके उसको कम्युनिकेट करें सो दैट उसको भी आइडिया हो और वो उसको लेगा। एंड फॉर एक्सपोर्ट अगर मैं बात करूँ, स्पेशली एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर मुरादाबाद से हैं, तो मुरादाबाद इज अ बिग एक्सपोर्ट हब। सो एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं, तो उसका भी आइए एक्सपोर्ट पार्ट से भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि बहुत सारी कह सकते हैं कि लैकुना मिलते हैं या फिर कहूँगा कि डिलेज मिलती हैं एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस में। सो सपोज ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने में एम्प्लॉय ने डिले कर दिया, 2 दिन का डिले हो गया। अगर वो डिले हो गया या MEIS लाइसेंस में कुछ डिले हो गया, तो ऐसे केसेस मिल जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि कंपनी के लिए क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का नोशनल लॉस हो जाता है कि वर्किंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट उसको बियर करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट लॉसेस जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके की फाइंडिंग्स आती हैं, तो ये केसेस हर एक क्लाइंट के पास हो सकते हैं, एक्सपोर्ट फर्म के पास हो सकते हैं। सो इसको स्पीड अप करने का तरीका क्या है कि पहले हमारे पास डेटा हो कि हाँ हो कितना लॉस रहा है, तो वो कौन बताएगा, वो हमारा ऑडिटर साहब बताएंगे। सो अभी हम इसमें आगे समझते हैं कि जैसे मैंने बेनिफिट्स बताया, आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें जैसे मैंने बताया था सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट है, वो डील करता है इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट को। सो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लीगल कंपल्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ कि कहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है। सो एवरी लिस्टेड कंपनी एज पर सेक्शन 138, एवरी लिस्टेड कंपनीज रिक्वायर्ड टू हैव 1 इंटरनल ऑडिटर। सो उसके लिए इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट जरूरी है। कोई भी लिस्टेड क्लाइंट है आपके यहाँ, तो वो तो बच ही नहीं सकता इसकी कंप्लायंस से। पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए उन्होंने लिमिट्स रखी हैं 25, 50, 100, 200। अब मैं बताता हूँ 25 क्या है। 25 है आपकी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, 50 करोड़ है पेड अप शेयर कैपिटल, और 100 करोड़ है आउटस्टैंडिंग लोन बोरोविंग्स, एंड 200 करोड़ है टर्नओवर। अभी किसी को याद नहीं हुआ होगा, मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बताने की कोशिश करता हूँ। इसका है DPBT, ठीक है। डी फॉर डिपॉजिट, B फॉर बोरोइंग, सॉरी P, DPBT, P फॉर पेड अप शेयर कैपिटल,
B फॉर बोरोइंग एंड T फॉर टर्नओवर। 25 डबल कितना हो गया 50, इसका डबल 100, इसका डबल 200, तो DPBT हो गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी कंडीशन पूरी होगी तो इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा, ये चारों हाँ, पूरी होगी? नहीं कोई भी 50 करोड़ और मोर कोई भी कंडीशन हो गई तो वो अच्छा, पूरा कोई भी। आपको कराना पड़ेगा। ओके ओके। तो DPBT में क्या है कि मैं अगेन रिपीट करता हूँ, डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग्स और लास्ट टर्नओवर। सो 25, 50, 100, 200 ये लिमिट है, ये कंपनीज के लिए लिमिट है। और कंपनीज कौन सी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। देखो लिस्टेड कवर हो गई, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अनलिस्टेड पब्लिक कवर हो गई इन चारों लिमिट से। अब बची प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट सेम है 100, 200 वाली। बाकी आप हटा दो, 25, 50 हटा दो, 100, 200 बची। 100 हमारा सेम चीज है, लोन बोरोइंग, और 200 करोड़ का टर्नओवर। सो अगर ये कंडीशन कोई भी आपका क्लाइंट फुलफिल कर रहा है और आईए नहीं करा रहा है, तो उसको भाई बोलो जाके कि सबसे पहले अपना ऑडिटर अपॉइंट कर, ठीक है, वो जरूरी है, वरना फिर तो कंपनीज एक्ट में डिफॉल्ट हो जाएगा। सो अगर हम आगे बात करें इंटरनल ऑडिट के की मेथोडोलॉजी की, कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, इसके अंदर कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहूंगा। सो उससे पहले ये समझना होगा कि इंटरनल ऑडिटर के मेन स्टेक होल्डर कौन होते हैं। जैसे हमने स्टैट ऑडिटर पढ़ा होगा, स्टैट ऑडिटर जो सेक्शन 139 में होता है कंपनीज एक्ट में, उसमें स्टेक होल्डर कौन होता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स। रिपोर्ट प्रेजेंट करी जाती है टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर तो हो सकते हैं, वो भी होते हैं स्टेक होल्डर, बट यहाँ पे लिस्ट लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर होगा प्रोसेस ओनर। प्रोसेस ओनर कौन होता है? जो डायरेक्टली उस प्रोसेस में इंगेज होता है। लाइक हम अगर परचेज की बात करें तो परचेज हेड हो गया, परचेज टीम के लोग हो गए, जो भी उस प्रोसेस को कर रहे हैं। सपोज पीओ बनाने की अथॉरिटी जनरल मैनेजर के पास है, तो वही पर्सन प्रोसेस ओनर हो गया। एचओडी मैंने ऑलरेडी कवर करती है उस डिपार्टमेंट का, एचओडी फाइनेंस, एचओडी परचेज, एचओडी आईटी, एचओडी मेंटेनेंस, एचओडी प्रोडक्शन, जो भी है। फिर इसके ऊपर टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग आ गए, सीएफओ, सीईओ, एमडी, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज स्टेक होल्डर फॉर इंटरनल ऑडिट। ऑडिट कमेटी, सो ऑडिट कमेटी, जहाँ पे ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ऑडिट कमेटी है। अगर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंपनीज में, वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी में क्या होता है? हाई रिस्क ऑब्जर्वेशंस जाती है हमेशा। तो इंटरनल ऑडिटर क्या होता है? वो अपनी रिपोर्ट बनाता है और रिस्क के बेस पे अपनी डिवाइड करता है ऑब्जर्वेशंस को, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क ऑब्जर्वेशंस, बट वो सबमिट कर देता है प्रॉपर्ली। बट ऑडिट कमेटी में जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं वो जाती हैं ओनली हाई रिस्क ऑब्जर्वेशन जनरली। और स्टैट ऑडिटर, सो स्टैट ऑडिटर इज आल्सो द स्टेक होल्डर फॉर द इंटरनल ऑडिट। ऐसा आपको पता होगा ऐसे 610 भी है कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सो आजकल और भी इसका अनाउंसमेंट हो गया है कि इंटरनल ऑडिटर जब हम कंपनीज का ऑडिट करता है एज पर कंपनी लॉ, वो भी रिलाई करता है उसकी रिपोर्ट पे, और उसकी रिपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ता। वो अपना काम शुरू कर देगा लेकिन फाइनल देगा नहीं रिपोर्ट जब तक आईए की रिपोर्ट नहीं होगी। लास्ट हो गया रेगुलेटर और इन्वेस्टर्स। सो रेगुलेटर्स हो गए जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी को रेगुलेट करते हैं। अगर इफ आई टॉक अबाउट बैंक, तो बैंकिंग में रेगुलेटर कौन हो गया? आरबीआई। अगर मैं कोई लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो सेबी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनका होता है। तो इस टाइप के कोई भी रेगुलेटर हो सकता है, वो भी स्टेक होल्डर है। तो उन सबके बेनिफिट के लिए काम करता है इंटरनल ऑडिटर। सो अगर मैं इसमें थोड़ा सा, इसमें अभी तक किसी को कोई क्वेरीज है, कुछ डाउट है, यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टू द रिपोर्ट पार्ट। यस सागर। मेरी क्वेरी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतनी छोटी सी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यहाँ पे छोटे से शहर में, कैसे क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी मतलब ये बताएं, कैसे अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं? क्लाइंट हमारा, सिंपल सी बात समझिए, बेचारे का टर्नओवर मान लीजिए 10 करोड़ का, 20 करोड़ का टर्नओवर है, और अगर हम उससे ये बात कहेंगे ना, तो सबसे बड़ा दिक्कत आएगी, वो कहेगा भाई साहब मेरी तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी, मैं तो आपको बिजनेस में घुसने नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल समझ एक रहे ये हैं। दिक्कत हमारे पास बहुत आने वाली है अगर हम ये चीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे या ऐसे तो लोग हमें ऐसे ही फर्म्स में ये ऐसा हो सकता है जहाँ पर मैनेजमेंट अलग है और ओनर्स अलग हैं, ऐसा ही हो सकता है ना? देखो इसमें दो बातें हैं सागर। अगर जैसे 10, 20, 50 करोड़ का टर्नओवर का क्लाइंट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली कंट्रोल रहता है ओनर का। उसके पास 10, 20 एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है,
बट अगर वो डायरेक्ट आइज रखता है ना अपनी, ठीक है, थ्रू सीसीटीवी या थ्रू, वो जनरली अभी तो कन्विंस आज की डेट में तो नहीं होने वाला, बट अगर उसको कभी भी बिजनेस ग्रो आगे करना है, भाई उसको ये बोलो कि अगर हमारा तुम्हारा 10-20 करोड़ का टर्नओवर है, मुझे 100 लेके जाना है, तो 100 खुद ले जाएगा? नहीं ले पाएगा वो। दे विल रिक्वायर स्टाफ, और जब स्टाफ होगा उसको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली ही विल रिक्वायर। मैंने एग्जांपल दिया ना, मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया, आप रिलायंस की हिस्ट्री लगा लो, अडानी ग्रुप की हिस्ट्री लगा लो, ये सब लास्ट कुछ ईयर्स में, जैसे रिलायंस की 40-50 ईयर्स की हिस्ट्री है शायद, या और भी, क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को एनहांस करा, अपना काम डेलीगेट करा दूसरे पे, तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना। कि जितना काम अपने हाथ में रखेंगे तो हम तो लिमिटेड हो जाएंगे ना। ऐसे क्लाइंट क्या होगा ना, वो आज 10 करोड़ का कर रहे हैं, कल 11 का कर लेंगे, परसों 12 का कर लेंगे, 15-20 तक उनकी वहीं तक खत्म हो जाएगा। मतलब वो लेकिन 10 से 100 नहीं पहुंच पाएंगे। 10 से 100 अगर पहुंचना है तो यू विल हैव टू बी सिस्टमैटिक। सो और दूसरे जो क्लाइंट ऑलरेडी विलिंग है, आगे बढ़ने के लिए हैं, बहुत प्रोग्रेसिव क्लाइंट हैं, तो वो तो डेफिनेटली कन्विंस होंगे कि भैया अगर आपको आगे ग्रो करना है, अगर आज आपकी एक फैक्ट्री रामपुर के किसी विलेज में है, कल आपको एक फैक्ट्री मुरादाबाद में खोलनी है, तो भैया आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करना पड़ेगा ना। तो जितना आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करोगे तो यू विल फाइंड कि आपका बिजनेस तभी ग्रो होगा। ये हम एडवाइस कर सकते हैं, चीज अच्छी रहेगी वैसे। हाँ, एडवाइस कर सकते हैं। देखो इनिशियली क्या होगा ना, वी विल इनिशिएट कि हम उनसे थोड़ा सा ही करेंगे कि हाँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, और ऐसा करेंगे तो आपको बिज़नेस को ये बेनिफिट हो सकता है। स्टार्टिंग में तो वो समझेंगे ये हमें कहानी सुना रहे हैं, बट थोड़े दिन बाद ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये हो रहा है, और उनको फिर क्लिक करता है बात। जैसे सपोज़ मैं तुमसे आज कोई बात कहूँ, मैं आज पैनल में सबसे कुछ कोई बात कहूँ और वो आपने पहली बार सुनी है, तो आप लोगों को लगेगा नहीं शायद ना ये बात हो तो सकती है, लेकिन देखते हैं चलो। लेकिन आप वही बात 2 दिन बाद किसी और से सुनो तो कहोगे हाँ, कुछ तो चल तो रहा है इंडस्ट्री में यार, कुछ तो हो रहा है। ये चर्चा चल रही है आपस में इसकी। ये बस ये मतलब आपके क्लाइंट के माइंड में हम क्लिक कर दे रहे हैं ये चीज को थोड़ा सा। बिल्कुल। डेफिनेटली Actually, डेफिनेटली हर इंडिविजुअल के काम करने की एक लिमिट है। हम्म, जब मैनेजमेंट को ये चीज समझ आ जाएगी ना, तो देन दे विल कम टू दिस। जी जी बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज है, हर चीज की लिमिट है। हम अभी क्या है, हमारे मुरादाबाद में आज छोटे शहरों में, नॉट टेकिंग मुरादाबाद स्पेसिफिकली, हम अपनी आज सारा काम अपने पास रखना चाह रहे हैं। जब हमारा दिमाग खुलेगा, हम दूसरों को हायर करेंगे, देन दे विल नीड द प्रोफेशनल्स। वही मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ। अगर मेरी तो कॉन्फिडेंशियलिटी चली जाएगी, फिर बिल्कुल। मैं अपना सामान कम दूसरों को कैसे दूं? तो वो 10-20 तक ही रह पाएगा, फिर 100 नहीं जा हाँ, पाएगा। आगे नहीं जा इसमें पाएगा। बिल्कुल सही इसमें बात। एक और भी होता है सीए सागर, इसमें एक और भी चीज़ होती है जो कि बिग फोर्स फॉलो करती है। एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है कि हाँ। इसमें कंपनी जो है अपने कंसल्टेंट से एग्रीमेंट करती है कि नॉन आवाज चली गई आपके आयुष। ये चीज सही कह रहे हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के हाँ, बारे में भी हम बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं चीज। उनको थोड़ा लगेगा। मैं शायद कॉल करूँ, मिनट, आवाज चली गई। नेट इश्यू होगा उनका। वो रिकनेक्ट कर रहे हैं अभी। लेकिन आज सही में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन्हें सुनने की, और बिल्कुल। हमें लग भी रहा है कि हम बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है ये चीज का। वो वाला हमारा दायरा एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगा। लिमिटेड है। हाँ, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा मुझे इनका, जो इन्होंने कहा ना, वो वाला आर्किटेक्ट वाला, कि हाँ। आर्किटेक्ट के पास हम जाते हैं बनवाने के लिए, तो हम पैसे ज्यादा भी देंगे, लेकिन वो आए कहे मैं बना दूंगा तो नहीं देंगे। या कहे लॉ की रिक्वायरमेंट है बनवाओ, वही बहुत अच्छी चीज है ये। हम अभी तक लॉ की रिक्वायरमेंट ही फॉलो करवा रहे हैं, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज दिखा सकते हैं। बिल्कुल। प्लीज किया जी। या सॉरी एवरीवन, देयर वाज सम No नेटवर्क problem. इशू। तो मैं ये बात कर रहा था कि एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी होता है। सो हम अपने कंसल्टेंट के साथ, मतलब क्लाइंट अपने कंसल्टेंट के साथ ही एग्रीमेंट कर सकता है कि उसको जो भी इन्फॉर्मेशन इस असाइनमेंट में मिलेगी वो किसी और कॉम्पिटिटर को या किसी को भी नहीं देगा। जैसे सपोज मेरी कंपनी के पास 2 सिमिलर इंडस्ट्री के क्लाइंट हैं, 2 बिगेस्ट क्लाइंट हैं जो कि स्टील एंड पावर सेक्टर में हैं। तो हम हमारे पास ये एग्रीमेंट है दोनों का कि हम उसके प्रैक्टिस उसको नहीं बताएँगे, इन द की बातें जो हमने करी हैं। इससे क्या होगा ना, अदरवाइज़ क्या होगा कि कल को दोनों सेम इंडस्ट्री के लोग हैं, आपस में हम उसको सेम से करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरत क्या है कि दोनों के पास प्रोटेक्शन है कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियल प्रैक्टिस है प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, हम जिनसे परचेज़ करते हैं, किनको सेल करते हैं,
वो सारी कॉन्फिडेंशियल रहती है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली आपको कंसल्टेंट को तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको कोई वे आउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर होती है और कैसे डिस्कशंस लेवल होते हैं, थोड़ा सा मैं वो पार्ट कवर कर देता हूँ, दैट विल आई थिंक बी बेनिफिशियरी फॉर ऑल ऑफ यू। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे हमने फील्ड वर्क स्टार्ट, सबसे पहले किक ऑफ हुआ, हमारा किक ऑफ मीटिंग क्लाइंट के साथ कंडक्ट करा, दैन ओपनिंग मीटिंग विद ऑल द प्रोसेस ओनर्स, जो प्रोसेस ओनर्स होते हैं हर एक प्रोसेस के, देन वी स्टार्ट अ फील्ड वर्क। इसके बाद क्या होता है, हमें एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है, जो भी हमने फाइंडिंग्स ली होती हैं। उस रिपोर्ट में क्या होता है, उस रिपोर्ट में 5C होते हैं, कंडीशन, क्राइटेरिया, कॉजेज, कंसिक्वेंसेस एंड करेक्टिव एक्शन। रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन, क्राइटेरिया, कॉजेज, कंसिक्वेंसेस एंड करेक्टिव एक्शंस। सो कंडीशंस क्या होती है कि हमने पाया क्या, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट हो गया क्राइटेरिया। सो हमने किस किस बेस पे ये कहा कि ये गलत है, कि व्हाट आर दी स्टैंडर्ड, कि हमने क्या स्टैंडर्ड से मैच करा। सपोज हमने कहा कि अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल रिक्वायरमेंट है तो क्यों है, कोई स्टैंडर्ड है इसका, कि हाँ भाई आप कहोगे ठीक है, हाँ कस्टमर कोड क्रिएट होगा या पीओ बनेगा या जनरल एंट्री पास होगी या कोई वाउचर पास होगा, उसके लिए अप्रूवल होती है, इंडस्ट्री में होती है, आपने नहीं करी, दैट इज रॉन्ग। ये हो गया आपका क्राइटेरिया। थर्ड वन हो गया कॉज, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन कि ये हुआ। सो क्या इसमें कोई ह्यूमन एरर है, कोई इसमें सिस्टमैटिक एरर है, कोई इसमें कंप्लायंस एरर है, क्या एरर है। कंसिक्वेंसेस, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा या हुआ, दोनों बातें हो सकती हैं, कि हिस्टोरिकल रिस्क, हिस्टोरिकल कोई फिगर भी निकल के आ सकती है जो कि पास्ट में हो गई हो, कि इतना लॉस आपका हो चुका है, या हुआ नहीं है, हो भी सकता है, या बोथ। सो हमें क्या होता है ना, हमें आइडेंटिफाई करके देना होता है कि सपोज हमने डिले कर दिया किसी कंप्लायंस में, सपोज उससे या हमने कोई डिले कर दिया, उसमें हमें वर्किंग कैपिटल लॉस हो गया। तो वर्किंग कैपिटल लॉस को कितना लॉस हुआ, हम कितना मनी बचा सकते थे या जो कर सकते थे उसको सेव कर सकते थे, तो दैट फिगर वी विल हैव टू गिवन इन आवर रिपोर्ट। लास्ट हो गया करेक्टिव एक्शंस। सो हमें यहाँ पर नहीं रुक जाना कि हमें प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसका रीजन बता दिया, हमें उसका रिकमेंडेशन देना होता है, करेक्टिव एक्शन देना होता है टू द मैनेजमेंट, कि ये एक्शन ले लो या ये कर लो तो आपका ये चीज ठीक हो जाएगी और इस तरीके से आप कर सकते हो। तो वी विल हैव टू गिव आवर रिकमेंडेशन इन आवर रिपोर्ट। सो मैं आपको एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर देता हूँ, एक सैम्पल रिपोर्ट, सो दैट विल गिव यू मोर आइडिया अबाउट द एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि किस तरीके से ये रिपोर्ट प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि इसका तरीका जो है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी स्टैट रिपोर्ट, स्टैट ऑडिट रिपोर्ट या अदर रिपोर्ट। सो स्क्रीन विजिबल है आप सभी को मेरी? हाँ जी, Yes, विजिबल है। Ayush. सो फर्स्ट हमारा पेज होगा फर्म लोगो, फर्म नेम एंड लोगो। सो जैसे सपोज मेरी फर्म का नाम है XYZ एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एड्रेस जो भी है और उसका कोई लोगो। सो वो लोगो हम फर्स्ट पेज पे पेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो गया, ये तो एक फॉर्मल पेज हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स हो गया कि हमने जो भी कवरेज किया है, नेक्स्ट कंटेंट हो जाएगा, नॉर्मल सी चीज़ है। थर्ड हो गया कंपनी बैकग्राउंड, ये हमें शॉर्ट में ब्रीफ करना पड़ता है कि हमारा क्लाइंट क्या करता है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सोर्स क्या हो सकते हैं। सोर्स एनुअल रिपोर्ट हो सकती है कंपनी की वेबसाइट से हम डेटा ले सकते हैं, कोई रेगुलेटर वेबसाइट ले सकते हैं। अनऑफिशियल हमें लोगों को नहीं लेनी चाहिए, एज वी ऑल नो कि हमने कोई अखबार का, कोई न्यूज़पेपर का डेटा ले लिया, वो हमने पब्लिश कर दिया, तो हमारे रिलायबल सोर्स होने चाहिए। प्रेफर कर जाता है कंपनी की वेबसाइट और कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वहाँ से डेटा लें। और थर्ड प्रेफरेंस रहता है कि रेगुलेटर की वेबसाइट, RBI की वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सेबी से मिल रहा है या किसी और रेगुलेटर से मिल रहा है। सो वो हमें ब्रीफ देना होता है, वन पेजर हम समराइज करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की लोकेशंस कहाँ है, प्लांट कहाँ है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये एक फॉर्मल पेज होता है। देन क्या होता है ऑडिट स्कोप। सो जो भी हमने प्रोसेस वाइज, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ एरिया, इज अ प्रोसेस। एक हो सकता है हमारा प्रोक्योरमेंट टू पे, दैट इज परचेज, या लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो हर एक का हमें एरिया बिजनेस प्रोसेस वाइज ऑडिट्स को बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्या हमारी कवरेज थी एज एग्रीड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट। सो वो हमें स्टेप वाइज लिखना होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इंटरनल ऑडिट टाइमलाइंस, ये हमें लिखना होता है कि ऑडिट कवरेज, हमने ऑडिट का पीरियड क्या क्या लिया है। क्योंकि देखो
स्टैट ऑडिट में क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो बाई डिफॉल्ट हमारा ईयर होता है, और हमें बस ये बताना होता है कि भाई ये FY22 की रिपोर्ट है, 21 की है, 23 की कौन सी है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि हमारा 12 महीने का पीरियड होता है, हम 1 क्वार्टर ले सकते हैं, 1 महीना ले सकते हैं, 1 साल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें इसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि हमारा ऑडिट पीरियड क्या है। जैसे हमारा इसमें 10 महीने लिए गए, 1 अप्रैल 20 से 31 जनवरी 21, ठीक है। ऑडिट कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, हमने ऑडिट कब परफॉर्म करा, सपोज हम गए उनके यहाँ 2 फरवरी से और हमने काम खत्म कर दिया 15 फरवरी को, तो हमें यहाँ पे वो पीरियड लिखना पड़ेगा कि हमने किस पीरियड में, किस टाइम फ्रेम में अपना काम किया, कब हमने ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू की, कब मैनेजमेंट ने उस पर रिस्पॉन्स दिया, और कब रिपोर्ट फाइनल इशू हुई। अब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट क्या होती है, मैनेजमेंट के साथ क्या डिस्कशन होता है, रिपोर्ट इशू कैसे होती है, इस पर मैं बाद में डिस्कशन कर लूंगा जब रिपोर्ट का हो जाएगा। वो भी एक पॉइंट होता है जो कि आईए के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट हमारा पेज है रिस्क रेटिंग स्केल। सो एज आई ऑलरेडी डिस्कस द थिंग कि रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें एरिया होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि रिस्क को असेस करना, रिस्क को इवैल्यू करना, और रिस्क कितना है उसकी एक रेटिंग देना, ये हमारे किस में वर्किंग होता है। तो हर हमें ऑब्जर्वेशन को 3 रिस्क स्केल में बांटना होता है, हाई रिस्क ऑब्जर्वेशन, मीडियम रिस्क ऑब्जर्वेशन, लो रिस्क ऑब्जर्वेशन। सो वो किस क्राइटेरिया के बेस पे होता है कि हाई रिस्क कौन सी होती है, जिसमें मैनेजमेंट को प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए, मतलब हम ये चाहते हैं कि इस पे मैनेजमेंट को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए, अगर इसमें थोड़ी भी डिले करी तो कंपनी के लिए बहुत रेवेन्यू लॉस हो सकता है या बहुत दिक्कत हो सकती है। मीडियम रिस्क में क्या होता है कि जरूरी है बट उसके लिए मीडियम टू कह सकते हैं मीडियम नियर मीडियम टर्म में मैनेजमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। लो रिस्क में क्या हो सकता है कि इसको ठीक है तसल्ली से कर लो, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और बट क्वेरी है, पॉइंट है। तो ये हमें बताना पड़ता है कि हमने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया है ड्यूरिंग आवर ऑडिट वर्क, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने ये 3 क्लासिफिकेशन किए हैं। तो ये हमें क्लाइंट को बताना पड़ता था कि क्लाइंट को पता लगे ना कि भाई ऑडिटर साहब ने किस बेस पे ये हाई रिस्क मीडियम किया है। तो वो हम एज पर द नीड ऑफ द असाइनमेंट हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मुझे वैल्यू टर्म्स में बता दो, जो जिसमें मुझे 1 करोड़ का लॉस हो रहा है मुझे हाई बता दो, भले उसमें डिसीजन के लिए 2 दिन मैं रुक सकता हूँ या कुछ भी चीज़ है। तो उस हिसाब से हम इसको थोड़ा सा ड्राफ्ट कर सकते हैं और जो भी अपनी मेथोडोलॉजी है वो यहाँ कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, अब हमने बैकग्राउंड कवर कर दिया, अब आगे ऑब्जर्वेशन डैशबोर्ड। यहाँ पे हम जो डिटेल ऑब्जर्वेशन है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका समरी देंगे कि रिस्क रेटिंग क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या है और उसका रूट कॉज क्या है। देन वी विल मूव टू द डिटेल ऑब्जर्वेशन। सो इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालते हैं जो भी ऑब्जर्वेशन का टाइटल है। जैसे एक एग्जांपल है यूजर एक्सेस राइट्स मैनेजमेंट प्रोसेस नीड्स टू बी स्ट्रेंथन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसको हमने हाई रेटिंग दिया हुआ है सपोज, तो यहाँ पे जो रिस्क रेटिंग है वो भी मेंशन हो जाएगी। फिर ऑब्जर्वेशन का बैकग्राउंड क्या है वो आ जाएगा, शॉर्ट में इन कंसाइज वे हम बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर देंगे, ऑब्जर्वेशन बता देंगे क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकली, क्या क्या कमी निकली आपकी, और उसका जो एनेक्सर है हमने कैसे फाइंड आउट किया उसका एक समरी में ऑब्जर्वेशन बना के यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ताकि मैनेजमेंट को आइडिया रहे कि भैया 10 इंस्टेंस मिले हैं जहाँ पे नॉन कंप्लायंस है, 10 इंस्टेंस हम यहाँ तो नहीं छापेंगे, एनेक्सर में दे देंगे। रूट कॉज जिसकी हमने बात करा था, रूट कॉज एनालिसिस की इसके कारण क्या है वो हमें बताना होगा समराइज वे में। पोटेंशियल लॉस कितना हो जाएगा इससे कंपनी को, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस है या कौन सा लॉस है वो हमें बताना पड़ेगा। रिकमेंडेशन क्या है, क्या इसमें रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एंड फाइनल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आवर रिपोर्ट। सो ये बेसिकली इसमें ब्रॉड एरियाज हैं। और मैंने एक चीज़ कहा था कि मीटिंग्स और रिपोर्ट्स के कुछ फिर डिस्कस करूंगा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट कैसे होता है, उसमें ब्रीफ कर देता हूँ 5 मिनट। तो सबसे पहले क्या होता है जब हमारा फील्ड वर्क कंप्लीट होता है आईए में, तो हम एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते हैं सेम फॉर्मेट में जो मैंने बताया। इस रिपोर्ट को बनाने के बाद हम जो भी प्रोसेस ओनर होता है ना उससे हम डिस्कस करते हैं। जैसे परचेज की बात है तो परचेज वाले के पास जाएंगे, और हम अगर बात है सेल्स की तो सेल्स वाले पर्सन के पास जाएंगे और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो शेयर करेंगे उसके साथ। जस्ट हम उसको एक ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर करेंगे, और ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर करने के बाद हम क्या करेंगे उसके साथ एक डिस्कशन करेंगे और उसके कमेंट्स को लेंगे, उसके कोई पॉइंट्स हैं कि भैया ऐसा नहीं होता वो पूरी हम उसको प्रॉपर एड्रेस करके फिर क्या करेंगे एग्जिट मीटिंग करेंगे टू द विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी।
फिर इसके मैनेजमेंट के डिस्कशन करने के बाद क्या हुआ, एक फॉर्मल रिपोर्ट बनेगी कि हाँ हमने अपना पक्ष रखा, अपने पॉइंट्स रखे, सामने वाले के पॉइंट्स रखे, उससे डिस्कस किया, और इसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी जो कि फाइनल क्लाइंट्स को हम पेश करेंगे। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट की रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, रिपोर्ट कैसे बनती है, क्योंकि इसका वे यू नो कि थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है फ्रॉम दी अदर रिपोर्ट्स। सो इसमें कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं होता है कि ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है। सो अपना एक फॉर्मेट है, इससे वेरी भी हो सकता है बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द क्लाइंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्लाइंट, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो एज द केस में भी। सो मैं बस समराइज अपनी बात को करता हूँ नेक्स्ट 5 मिनट्स में। सो इंटरनल ऑडिट की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारी नीड आजकल बढ़ रही है इसमें बहुत ज़्यादा, तो अभी हमें अगर नेक्स्ट लेवल सीए फर्म्स की अगर बात करनी है, सो वो मेरे हिसाब से आईए असाइनमेंट्स के बिना पूरी नहीं हो पाएगी। सो डेफिनेटली वी विल हैव क्लाइंट्स फॉर इनकम टैक्स compliances, जीएसटी compliances, नॉर्मल ऑडिट compliances, अकाउंटिंग एंड अदर वर्क, डेफिनेटली वी विल हैव और वी शुड डू। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए, बट साथ साथ ही हमें इन अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज द थिंग फ्रॉम विच वी कैन अर्न मोर एंड मोर मनी। ठीक है, और इसमें मैंने जैसे बताया, एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे क्लाइंट हैप्पीली आपको पैसा देगा, और अगर क्लाइंट को ग्रो करना है डेफिनेटली दे विल रीच टू यू। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप सबको शायद पता भी होगा, इंटरनल ऑडिट में ऐसा कोई बात नहीं है कि वो सीए ही कर सकता है, इसमें कोई भी कर सकता है। इसको कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है, इसको कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है, इसको कोई और भी कर सकता है, इसको इंजीनियर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अपॉर्चुनिटी सीए के लिए शायद सबसे ज्यादा है, क्योंकि सीए है ना, जैसे होता है कि सीए तो कुछ भी कर देंगे, वो वाला हिसाब होता है। तो वो एक कॉन्फिडेंस हम लोगों के अंदर होता है, तो वो कॉन्फिडेंस काम भी आता है। हम लोगों को बोलो ना कि प्रोडक्शन ऑडिट करना है, हमें पता भी नहीं प्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन हम कर देते हैं। सो क्योंकि वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ कि सीए है तो कुछ भी कर देंगे, और इसी वजह से सीए इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो चाहे वो प्रैक्टिसिंग में हो, चाहे वो जॉब में हो, सो सबके लिए अच्छा है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन इंटरनल ऑडिट। Very nice session, sir. So any participant has any questions, queries? नहीं परिमल, अभी कोई क्वेरी नहीं है। The The session was very short, precise and knowledgeable. Yeah. I enjoyed. Yeah, very much. आयुष सर ने बहुत अच्छे से चीजें समझाई. The examples he has given were very nice. As Sagar Yes. sir said, architect वाला example, that was very correct. और Thank अगर you, ये thank you. चीजें हम अपने यहाँ ले आए तो it will be very beneficial. डेफिनेटली ये बहुत बड़ा स्कोप है जो हमने छोड़ रखा। हाँ, बढ़िया। हमने ये बहुत कहा बड़ा छोड़ा स्कोप है, है. हम बैंक ऑडिट के पीछे जा रहे हैं। एक्चुअल में सही बताया तो बैंक ऑडिट में भी कोई इतना बेनिफिट अब नहीं रह गया। नहीं हाँ. रहेगा सर। रिस्क बहुत ज्यादा है हमारा। हम बहुत वही risk है. काम कर रहे हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, और ये एक ऐसा बिल्कुल। काम है जिसमें रेवेन्यू ज्यादा है और रिस्क कम है। इसका मैम सर हाईली कम है। रेम्यूनरेटिव है। आई वाज आल्सो इन वेदांता, सो वहां डिलॉयट की 40 ऑडिटर्स की टीम वाज ऑलवेज देयर। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट था, 40 ऑडिटर्स वर ऑलवेज देयर इन आवर मतलब बिल्डिंग। वो कभी प्लांट पे होते थे, कभी यहाँ पे होते थे। एवरी मंथ दे यूज्ड टू स्विच डिपार्टमेंट्स कि आज इस मंथ इस डिपार्टमेंट ऑडिट होगा, इस मंथ इसका। तो मतलब एम्प्लॉयज के ऊपर भी प्रेशर रहता है एक, उन्हें पता है कोई उनके ऊपर एक वॉच डॉग बैठा है मैनेजमेंट के अलावा। और रेम्यूनरेशन आई कैन नॉट टेल यू क्या बिल्स बनते थे उनके, बिकॉज आई यूज्ड टू हैंडल द अकाउंट्स एंड ऑल। मतलब सीनियर मैनेजर जो होता है ऑडिट टीम का, उसके बिलिंग होती है 25-30,000 पर डे, पर मैन डे। पर मैन डे या आर्टिकल्स की बिलिंग होती है 10 to 15,000 पर मैन डे। बताइए, 7-8 हजार रुपए देता हूँ हाँ जी, आप सोचिए किस लेवल की बिलिंग होती है। सो मतलब बहुत अच्छा एरिया है, बट वही है कि ये एक्सप्लोर फैक्ट है सीए परिमल, ये फैक्ट है कि इसमें क्लाइंट हैप्पीली पैसा देगा आपको। बिल्कुल हाँ, वाकई में कंप्लायंस में हैप्पीली पैसा नहीं देता, वो बोझ समझ के देता है पैसा। बिल्कुल। उसकी कमियां पहले पता लग जाती है ना, फिर उसे बाहर पैसा नहीं देना पड़ता. हाँ एक और चीज कहूँगा थोड़ा पर्सनली, कि हाँ. हमें अपनी फर्म को बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए बड़े से मतलब ये हमें जुड़कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम अकेले हैंडल नहीं हो सकता। नहीं कर सकते सर। हम अगर कोई ऑडिट असाइनमेंट ले भी लें तो हम उसे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑफिस का अपना वर्कलोड रहता है। तो ये काम के लिए थोड़ा सा फर्म को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अभी इसमें एक और भी हो रहा है, लोन स्टाफिंग का काम भी काफी बढ़ रहा है, बिग फोर्स बहुत में भी हो ज्यादा। रहा है और बाकी फर्म्स भी कर रही हैं। सो जैसे मैंने बताया था कि इन हाउस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सेट हो रहा है, काफी कंपनीज में हो रहा है अब तो, ऑलमोस्ट हर कंपनी कर रही है, बिग कंपनीज। गुड़गांव में देखो कि हर एक कंपनी की वैकेंसी निकली हुई है।
तो वो क्या कर रहे हैं, खुद से स्टाफ तो हायर कर लेते हैं, सीए या जो भी है, साथ साथ ही वो बिग फर्म्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो क्या होता है, ठीक है वहाँ से दूसरा आ जाएगा तुरंत, उनको रिक्रूटमेंट की कॉस्ट नहीं खर्च करनी पड़ रही। तो वो क्या करते हैं कि वो डेलॉइट से बात कर लेंगे, ईवाई से बात कर लेंगे, या किसी और फर्म से बात कर लेंगे कि भैया हमें स्टाफ दे दो 2 लोग जो हमें ऑडिट के लिए काम करना है। तो उनका क्या होता है कि एम्प्लॉय पेरोल पे नहीं होता, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट बच जाती है कंपनी की, और स्टाफ भी उनको अच्छा मिल जाता है। और कोई छोड़ के जाएगा तो उसकी दिक्कत नहीं है, डेलॉइट को फ़ोन करेंगे या उसको फ़ोन करेंगे फर्म को, वो तुरंत से दूसरा बंदा दे देगी। तो ये भी अच्छा है, और ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए भी है, मतलब प्रैक्टिसिंग सीए है तो वो सबके लिए है। बिल्कुल। तो सागर सर शायद इसलिए एमडीपी का फॉर्मेट भी अब इंट्रोड्यूस किया गया है कि मतलब वही बात है, इंटरनल ऑडिट के लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल है। मतलब एमडीपी इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है शायद, भाई मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस है, आप और भी प्रोफेशनल्स के साथ अपनी फर्म बना सकते हैं। और हाँ। लेकिन ऑब्वियसली उसमें अभी एक इशू आ रहा था कि जैसे और प्रोफेशनल्स के साथ फर्म बना रहे हैं तो उसमें और प्रोफेशनल्स का एक्ट अमेंड नहीं हुआ है। जैसे मैं सीएस के साथ पार्टनरशिप करना चाहूँ तो Okay. हमारा एक्ट तो अमेंड हो गया लेकिन उनका अमेंड नहीं हो पाया अभी। तो इस वजह से वो Okay. प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी कोई प्रपोज तो है इस पार्लियामेंट सेशन में, हाँ। सीए, सीएस और सीए में एक्ट को अमेंड करने का प्रपोजल है, बट आई डोंट नो, आई थिंक मुझे डिसिप्लिन वाली कुछ बात चल रही है, मुझे आई एम नॉट श्योर। मैं भी श्योर इस बारे में। अमेंडमेंट लेकिन आ इतना रही है, वो श्योर हूँ कि अमेंडमेंट CS पाइपलाइन और में है। सीए भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते उनका, क्योंकि सीए आईसीआई का एक्ट अमेंड हो चुका है बट उनका एक्ट अभी अमेंड नहीं हुआ है जिसमें वो पार्टनरशिप होंगे, पार्टनरशिप में आएंगे। हाँ। बट सर अब तो शायद मुझे जो है सीएस कैन आल्सो बी डायरेक्टर्स इन कंसल्टेंसी फर्म्स, मतलब कंसल्टेंसी कंपनीज। हाँ 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 हाँ, तो ये चीज आ रही है, ये या चीज बहुत अच्छी है। और सी अनुज गोयल सर आए थे मुरादाबाद, सो हाँ हाँ हाँ। ही हैज टोल्ड अस दैट, हमको भी इतनी नॉलेज नहीं थी, सो ही टोल्ड कि कंसल्टेंसी फर्म्स बना सकते हो आप लोग, उसमें और भी बहुत लोग हो सकते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, यू कैन बी डायरेक्टर्स इन दैट, सीएस कैन बी वो डायरेक्टर। ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So I think we don't have any questions. हाँ, सेशन अब हम वाइंड अप करें। Yeah. So I would request Mani ma'am आज का to, सेशन थोड़ा कम टाइम करा। yeah, but knowledgeable था, बहुत अच्छा था. बहुत नॉलेजेबल था। So I would request Mani ma'am to convey the vote of thanks, please ma'am. As I said, it was a short, precise, and knowledgeable session. I very much thanks Sagar Agarwal, who is always good to hear. उनको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, और बैक टू बैक अब सुन लिया तो और अच्छा लगा। और आयुष अग्रवाल, you were also very good. आपके दिए गए एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे थे, बहुत रेलेवेंट थे, अच्छे से समझ आया चीजें। एंड थैंक यू सागर एंड आयुष सर for giving your precious time to the members of Muradabad branch. And Parimal, thanks to you too. Thank you ma'am. For making this meeting and coordinating everything. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Okay. Thanks Mani ma'am. Thank you Thanks everyone. Thank you Mani Sagar. ma'am. Thank you sir. Shall we leave? Yeah. Yeah. Thanks to all of you. Bye-bye. Thank you. Bye.